فارا اور فرحات کے برعکس فرحت بیگم اور اشال کی رات قدرے پرسکون گزرنے والی تھی۔ ان دونوں نے پورا گھر چھان مارا تھا، فارا سے متعلق ایک بھی چیز نہ ملی۔ فضل بیچارہ چپ چاپ ان دونوں کے کہے پر عمل کرتا جا رہا تھا۔ دونوں کا موڈ ایک دم خوشگوار ہوا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ ابھی بھی خطرہ تھا، لیکن وہ دونوں سوچ چکی تھیں اب فرحات کو کیسے قابو کرنا ہے۔ نئے پلان پر عمل کرنے اور کامیاب بنانے کے لیے وہ دل و جان سے کوشش کرنے والی تھیں۔ صبح کو پر پھیلائے کافی وقت ہو چکا تھا، 10 بج رہے تھے۔ فارا گہری نیند میں تھی، سوتے وقت چہرہ پرسکون تھا۔ نیند نے بوجھل اعصاب پر اچھا اثر ڈالا۔ جانے اور کتنا وقت سوتی کہ آنکھیں نامانوس سی آواز پر لرزی تھیں، اور پھر یہ آواز اتنی صاف محسوس ہونے لگی کہ اسے آنکھیں کھولنی پڑیں۔ 3-4 بار آنکھیں کچھ پل یوں ہی نہ سمجھی میں کھلیں اور بند ہوئیں۔ یوں ہی بند آنکھوں سے آہستہ سے کروٹ بدلی۔ آواز آنا بند ہو چکی تھی تو اس نے غور کرنا ضروری نہ سمجھا کہ کس چیز کی آواز تھی، لیکن اب پھر آواز آنے لگی۔ یوں ہی لیٹے ہوئے آنکھیں بند کیے اس نے آواز پر غور کیا۔ یہ سانسوں کی آواز تھی، جیسے کوئی گہری نیند میں سوتے وقت لے رہا ہو۔ وہ تو اکیلی تھی، پھر یہ کون تھا جس کی آواز اسے سنائی دے رہی تھی؟ اس احساس پر خوف کی ایک لہر فارا کے پورے جسم میں دوڑی تھی۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھولی تھیں، اور آنکھیں کھولتے ہی اپنے نزدیک گہری نیند میں سوئے گہری سانسیں لیتے جس وجود پر نظر پڑی وہ فرحات کا تھا۔ فارا کا دل جو خوف کے احساس سے ڈوبا تھا آہستہ آہستہ اپنی جگہ پر آنے لگا۔ وہ اٹھ کر اپنے سر پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کیے اپنی حواس بحال کرنے لگی۔ اس کے کمرے میں کوئی آ گیا ہے، اس خوفناک احساس نے اس کی جان نکال دی تھی۔ حواس بحال ہوئے تو نظریں خود بخود سوئے فرحات تک گئی تھیں۔ وہ کس وقت کمرے میں آیا اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ وہ الٹا لیٹا ہوا تھا، چہرہ اس کی جانب تھا، کل والے شلوار قمیض سمیت سویا ہوا تھا اور گہری نیند میں لگ رہا تھا۔ گہری سی آنکھیں بند تھیں، لب نرمی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ ایک بازو کو سرہانے کے طور پر سر کے نیچے رکھا تھا، دوسرا فارا کے سرہانے قریب دھرا تھا، لیکن فارا کو نیند میں محسوس ہی نہ ہوا۔ وہ نزدیک ہی سویا تھا لیکن فاصلہ رکھ کے۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر فارا نے سامنے دیکھا تو نظر جوں کے توں پڑے چائے کے کپوں پر پڑی تھی۔ اب فارا کو سمجھ آیا کہ وہ نامانوس آواز کس کی تھی۔ وہ سوئے ہوئے فرحات کی تھی۔ گہری مدھم ہوتے سانسوں کی جنبش جو اب بھی آ رہی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھی رہی اور کل کے ہوئے واقعات ذہن میں دہرانے لگی۔ جو باتیں کی، جو باتیں سنی، سب دوبارہ یاد کرنے لگی۔ سو کر فریش اٹھی تھی، اب دماغ بھی صحیح کام کر رہا تھا۔ فرحات نے کروٹ لی تو وہ سوچوں سے نکلی۔ وہ سیدھا ہوا تھا، ایک بازو آنکھوں پر اور دوسرا سینے پر رکھ چکا تھا اور نیند میں تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ابھی اور سوئے گا۔ سویا ہوا کیسا لگ رہا ہے، جیسے… سر جھٹک کر فارا نے خود کو آگے سوچنے سے روکا۔ اس پر سے نظریں ہٹا کر اپنے کیچر میں جکڑے بال جو کل رات گیلے ہی باندھے تھے اب بکھرے ہوئے تھے کھول کر دوبارہ سے کیچر میں سمیٹے اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ فرحات تو ایسے سو رہا تھا جانے کتنے راتوں سے سویا نہ ہو۔ وہ فریش ہو کر آئی تو وہ ایسے ہی سو رہا تھا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ کچن میں چلی گئی۔ بھوک بہت لگ رہی تھی۔ اس نے انڈے نکالے، بریڈ بھی پڑی تھی، ایک برنر پر چائے رکھی، دوسرے پر انڈے فرائی کرنے لگی۔ 5 منٹ لگے انڈے فرائی کرنے میں، چائے بھی ابال آنے کے بعد پک رہی تھی۔ بریڈ کو اس نے ہلکا سا گرم کیا۔ یہ کام کرنے کے بعد باہر گئی، رات کے پڑے کپ اٹھا کر لائی، سینک میں چائے گرائی۔ برتنوں کی کھٹپٹ سے فرحات کی آنکھ کھلی۔ کھل کر لمبی انگڑائی لے کر اس نے ساتھ نظر ڈالی جہاں فارا سوئی ہوئی تھی، لیکن جگہ خالی تھی۔ اس نے فارا کا تکیہ کھینچا، اپنے ساتھ لگایا، پھر آنکھیں موند گیا۔ گہری سانس لے کر خوشنما سی مہک کو محسوس کیا جو فارا کے وجود کا حصہ تھی۔ فارا! فارا! وہ یوں ہی آنکھیں مندوں سے آوازیں دینے لگا جیسے وہ ایک نارمل میاں بیوی ہوں جن میں بہت پیار ہو۔ کیا انداز تھا، واہ، قابل تعریف۔ چائے ڈالتی فارا کو اس کی آواز اچھی طرح سے آئی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، اپنا کام کرتی رہی۔ صبح بخیر۔ کچھ لمحوں بعد وہ کچن کے دروازے پر تھا۔ فارا رخ موڑے خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ بالکل بات نہیں کرو گی؟ فرحات آگے بڑھا۔ بولو۔ اس نے فارا کو کندھوں سے اکڑ کر گھمایا اور دونوں جانب ہاتھ رکھ کر اس کا راستہ بھی بند کر دیا۔ فرحات! وہ برہمی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ریلیکس رہے گی اور اسے نظر انداز کرے گی، لیکن سوچنے سے کیا ہوتا ہے۔ صبح بخیر۔ فرحات اس کے ناگواری کو نظر انداز کرتے ہوئے دھیمے سے مسکرا کر کہنے لگا۔ انداز لبھا دینے والا تھا۔ اس کا دل اس وقت تو کچھ اور بھی کرنے کو چاہ رہا تھا، لیکن اگلا فریق تو اس پر ویسے ہی بے پر رہا تھا، اگلے عمل پر تو ہنگامہ ہو جانا تھا۔ سو وہ اپنے جذبات کو قابو کیے رکھا، جو آج نہ جانے کیوں ہمک کر باہر نکلنے کو تھے۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب جو تم کر رہے ہو مجھے اچھا لگتا ہے؟ میرے دل میں لڈو پھوٹتا ہے تمہارا پیار بھرا روپ دیکھ کر، اور سوچتے ہوئے کہ شروع میں کچھ نخرے کرے گی پھر مان جائے گی۔
फारा भी पक्की थी। वो तमस्कर से उसकी आंखों में देखकर बोली। उसने उसका दिल लुभाने वाला अंदाज किसी खातिर में ना लिया था। नहीं, ऐसा नहीं लगता। फरहाद ने उसके इतराफ से अपने हाथ उठाए, उसे कंधों से थामकर नजदीक किया। तुम मानो या ना मानो, अब तुम्हें बर्दाश्त करना होगा मुझे, क्योंकि अब मैं तुम्हें मुझसे अलग होने की इजाज़त भी नहीं दूंगा। तो अच्छा है कि तुम भी अपने दिमाग में और दिल में ये बात बिठा लो कि अलहदगी या तलाक जैसा कोई अमल होगा। अल्फाज के बरक्स उसका लहजा धीमा था। उसे नज़दीक करने के बाद फरहाद ने अपने दोनों बाजू उसकी कमर के पीछे ले जाकर अपने हिसार में कैद किया। साथ ही फरहाद ने अपने हाथ सख्ती से एक दूसरे में बांधे थे कि वो जितनी भी कोशिश करे लेकिन उससे निकल नहीं सके। तुम ये ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो? खुद से पूछो, क्या ये जायज़ है? पिछले वाक़यात को देखा जाए तो ये नहीं होगा फरहाद। फारा को उसका धौंस भरा अंदाज आग ही लगा गया था। ऊपर से उसकी ज़बरदस्ती की कुर्बत। वो मचल कर उसके बाजुओं से निकलने की कोशिश करने लगी। जायज़ है या नहीं है, पीछे का जो भी हुआ उस पर बात होगी। सब सवालों के जवाब दूंगा। तुम सही हो, मैं गलत था, लेकिन गलत हूँ नहीं। मुझसे लड़ो, नाराज़ रहो, लेकिन अलग होने वाली बात दोबारा नहीं होगी। उसके गर्भ से निकलने के लिए जोर लगाती फारा के कान में उसने सरगोशी की थी। बोलते हुए इसके लब फारा के कानों से टच हुए थे। तुम इस मामले में ज़बरदस्ती करते हुए जचते नहीं हो फरहाद। जिस वक्त तुम्हारा मन हो चीज़ें उस वक्त तुम्हें दस्तयाब हो जाएं, और जब तुम्हारा मन नहीं था तुम जैसे मर्जी जलील करो। फारा उसकी इस कदर कुर्बत पर अंदर अंदर रूहानसी हो रही थी, पर जाहिर ना किया। लेकिन कोशिश के बावजूद भी उसका लहजा लड़ता था। उसने बमुश्किल अपने लहजे में सख्ती समोई थी, लेकिन फरहाद जैसे इस वक्त किसी और ही दुनिया में था। ऐसा नहीं है, तुम बहुत अहम हो मेरे लिए फारा, बहुत ज़्यादा अहम। और मुझे ये भी मालूम है तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, लेकिन नाराज़गी दूर हो सकती है ना? फरहाद ने नरमी से कहते हुए उसके माथे पर बोसा दिया था। उसके लबों की तपिश फारा को अंदर से लरसा गई थी। उन लम्हों में फसूता अपनी जानिब खींच रहे थे, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। भूल जाना इतना आसान नहीं था। प्लीज़ फरहाद। फारा ने उसका ढीला पट्टा वजूद का हजार तोड़ा था। तुम मुझ पर धौंस जमाकर अपना फैसला नहीं थोप सकते। मैं कल ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं अलहदगी चाहती हूँ। फारा कहते हुए तेजी से किचन से निकली थी। बाहर आकर गहरे सांस लेकर खुद को पुरसकून करने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। दिल पे हंगम सा दौड़ रहा था। उसके बाद में फरहाद ने गहरी सांस लेकर किचन से बाहर कदम बढ़ाए। मैंने भी बता दिया है, ये नहीं हो सकता। वो किचन के दरवाजे से दायां पहलू से टेक लगाकर सीने पर हाथ बांधे खड़ा हुआ था। नजरें उसकी पश्त पर जमाई थीं। नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। जब इतने साल गुजार सकती हूँ तो बाकी की ज़िंदगी भी गुजार सकती हूँ। मेरे लिए एक जैसी बात है, इस रिश्ते का होना या ना होना। फारा खुश्क होते लबों पर जुबान फेरकर पलटी थी। एतमाद काफ़ी हद तक बहाल हुआ था। फरहाद आगे से कुछ ना भूला, खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी निगाहें फारा को अपने आर पार होती महसूस हुई थीं। देखते हैं फिर कौन अपनी बात पर पूरा उतरता है। फरहाद मलिक। वो सुकून से बोलता उसे तब चढ़ा गया। और आइंदा ऐसी हरकत मत करना, वरना। चेहरे पर नागवारी और गुस्से के तासुरात सजाकर फारा ने सख्त लहजे में कहते हुए उसे देखा। वरना? फरहाद ने उसे भव्य ताकर देखा। इसी पर फरहाद का फ़ोन बजने लगा, जो बेड पर पड़ा था, लेकिन वो फारा को ही देखता रहा। फारा ने लब भींचे। उस पर तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। कितना रिलैक्स था वो। बात पूरी करो अपनी, वरना। वो फिर उसी अंदाज में बोला। नरम गरम तासुरात सजाए उसे देख रहा था। इसी पल फिर उसका फ़ोन बजने लगा। वो शरारती मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके पास से गुजरकर फ़ोन की जानिब बढ़ गया। जी अम्मा, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। फ़ोन पर बात करते फरहाद को फारा ने इस ताज़ा अंदाज में देखा था और सर झटक कर किचन में चली गई। चाय ठंडी हो चुकी थी। इसने दोबारा सॉस पैन में डाली और गर्म करने लगी। बाकी नाश्ता भी ठंडा हो चुका था। मैं जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं। नाश्ता तुम कराओगी नहीं? वो दरवाजे के पास आकर बोला। उसकी बात पर रुख मोड़े खड़ी फारा ने तंजिया हंकारा भरा था। जो मर्जी करो, गालियाँ दो, नाराज़ हो, मत मानो, लेकिन हम साथ ही होंगे। फरहाद ने पीछे से आकर उसे बाजुओं में कैद किया। फारा को इस अमल की भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो शशदर खड़ी थी। फरहाद ने अपनी बात मुकम्मल करके थोड़ा सा आगे होकर उसके तासुरात जांचना चाहे। लब नीमवा खुले थे और चेहरे पर दुनिया जहान की बेयकीनी थी। बाय, अपना ख्याल रखना। आखिर में जज्बात की रूह में आकर फरहाद ने उसके नरम गाल को हल्के से छुआ था और तेजी से बाहर निकला। किसी हद तक उसे अंदाजा था कि उसकी हरकत पर फारा का रद्द-ए-अमल शदीद होगा। कोई पता नहीं, पास पड़ी छुरी ही मार देती। फारा को उस वक्त होश आई जब वो किचन से तो क्या कमरे से ही निकलने वाला था। घटिया इंसान, तुम बहुत।
फारा का गुस्से से बुरा हाल था। गुस्से में उसे अल्फाज भूल गए। उसने कप उठाकर सैंक में दे मारा और बेकसूर कप कई हिस्सों में तब्दील हुआ था। जो भी हूँ अब बर्दाश्त करना पड़ेगा, फरहाद ने जाते जाते मुड़कर बुलंद आवाज में कहा। वो तिलमिलाती हुई बाहर निकली तो वो जा चुका था। फारा का गुस्सा किसी तौर पर कम ना हुआ। बाहर जाते हुए उसने लोशन की बोतल उठाई, क्योंकि जल्दी में वही हाथ आई थी, वरना दिल तो चाह रहा था बंदूक हाथ आ जाती। जब तक वो बालकनी तक पहुंची, वो सीढ़ियां उतरकर दरवाजा बंद कर रहा था। फारा ने बोतल वहीं से मारी, लेकिन निशाना चूका था। फरहाद ने पलट कर उसे देखा, फिर गाड़ी के पास लोशन की गिरी बोतल को। उसका कहका निकल गया। फारा ने जोर से बालकनी की ग्रिल को पकड़ा था, गोया अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहा। गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ वो उसे यूं देख रही थी जैसे आंखों से ही भस्म कर देगी। फरहाद ने मुस्कुराकर फ्लाइंग किस उसकी जानिब उछाली और बाय बाय करते हुए गाड़ी में बैठा। जलील, कमीना, घटिया इंसान। गुस्से से भरी फारा दूर जाते उसकी गाड़ी को देखकर बड़बड़ाई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके किस अंदाज या बात ने फरहाद को इस हद तक जाने पर मजबूर किया था। वो उसे जितनी नागवारी और नफरत दिखा रही थी, वो इतना ही उसके करीब आ रहा था। फरहत बेगम की रात जितनी पुरसकून थी, इस वक्त उन्हें उतना ही गुस्सा था। ऊपर से इशाल की बातें। खाला जान, आप उसे इतनी दूर से मिलने आई हैं। चले, मैं तो कोई नहीं, आपका तो उसे ख्याल करना चाहिए था। रात भर नहीं आया और अब देखें 10 से ऊपर, बल्कि अब तो 11 बज चुके हैं। फरहाद से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इस बात की। फरहत बेगम का फिशारे खून मजीद बढ़ने लगा। इशाल की बातें सच थीं। वाकई फरहाद को उनकी कोई फिक्र नहीं थी। बहुत मायूस किया है फरहाद ने मुझे। उसकी बातों को जवाब में उन्होंने जुमला अर्जीदा लहजे में बोला था। फ़ोन किए भी आधा घंटा गुजर गया था और मज़ीद वक्त गुजर रहा था। फजल बेचारा इस नए मामले में और परेशान हुआ था, और अब तो उन्होंने बाहर चौकीदार को बुलाकर उसके आने जाने की तफसील पूछी थी, जिसका कोई सर पैर नहीं था। चौकीदार के मुताबिक साहब के आने जाने का कोई वक्त नहीं था। कभी वो 3 बजे आते, कभी सारी रात नहीं आते, और कभी कभी तो 2 दिन घर नहीं दिखते थे। उन्होंने फजल से इस बात की तस्दीक चाहिए तो उसने भी ताइदी अंदाज में सर हिलाया था। फारा की मौजूदगी का यहाँ कोई सबूत नहीं मिला था, लेकिन मुलाजमों के बयानात के मुताबिक अब उन्हें शक होने लगा कि वो उससे बाहर ही मिलता है या किसी और जगह रखा हो। ये बात भी सामने की थी कि वो उसे बगैर बताए आई तो वो पकड़ा गया। खुद तो उसने नहीं बताया और बताना भी ना था। इसी पर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई और कुछ लम्हों बाद फरहाद उनके सामने था। मेरी प्यारी अम्मा जान, कैसी हैं? वो खुली बाहों से उनकी सिमत बढ़ा था। फरहाद बेगम को उसका प्यार भरा अंदाज इस वक्त ज़रा अच्छा न लगा। इशाल खामोशी से दोनों को देख रही थी। उसके करीब आने पर उन्होंने उसके हाथ झटका और कफगी से चेहरा दूसरी सिमत मोड़ा, लेकिन फरहाद ज़बरदस्ती उनके गले लग गया। सॉरी अम्मा, माफ़ कर दें। उसने अपना बाजू का घेरा थोड़ा सख्त किया और उनके माथे का बोसा लेते हुए बोला। अम्मा यूं ही मुंह बनाए दूसरी सिमत देखती रहीं। कैसी हो इशाल? वो सोफे पर अम्मा के साथ ही बैठते हुए बोला। ठीक, तुम कैसे हो? इशाल ने भी ख़राब मूड के साथ जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फिट। फरहाद ने मुस्कुरा कर कहा। आपने भाई को भी नहीं बताया होगा ना कि आप आ रही हैं, वरना मुझे मालूम हो जाता। फरहाद ने उनके नाराज़ चेहरे पर नज़र डाली थी। हाँ, तुझे मालूम नहीं हुआ, इसी बात का तो तुझे दुख हो रहा होगा। अगर मालूम होता तो अपनी पोल खोलने देता भला। उन्होंने उसे घूर कर देखा। अम्मा जान प्लीज़, अभी नहीं, बाद में। आपने नाश्ता किया? मुझे बहुत भूख लग रही है। फजल, फजल। फरहाद फिर उनके साथ चिपकते हुए बोला और फजल को आवाज़ें देने लगा। जी सर। फजल फ़ौरन हाजिर हुआ था। कल रात से ही बेचारे की हालत ख़राब हो चुकी थी, फरहाद साहब की अम्मा और कज़न के सवालों के जवाब दे देकर। जल्दी से मज़ेदार किस्म का नाश्ता बनाओ, बहुत भूख लगी है। फरहाद के कहने पर फजल जी साहब कहता हुआ वापस गया। अंदाज उजलत भरा था। मैं 5 मिनट में फ़्रेश होकर आता हूँ, वो उठकर अपने कमरे की जानिब जाते हुए बोला। उसके नॉर्मल रवैये पर फरहत बेगम और इशाल ने एक दूसरे की शक्ल देखी थी। फरहत बेगम के सवालिया अंदाज से देखने पर इशाल ने कंधे अचकाए थे। उसे क्या पता कि फरहाद कौन कौन से चक्कर चला रहा है, लेकिन वो दिल में दुखी हुई थी। फरहाद और वो तकरीबन काफ़ी महीनों बाद मिले थे, लेकिन फरहाद के अंदाज में कोई गर्मजोशी ना थी। वो नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे उनके दरमियान कज़न के अलावा और कोई रिश्ता कभी नहीं रहा था। साहब, हम इस्लामाबाद तो आ गए हैं, लेकिन ये काम हम फैसलाबाद और लाहौर में भी तो कर सकते थे। मुंशी ने आखिर अपनी उलझन बाहर निकाल ही दी थी। वो लोग सुबह की फ़्लाइट से पहुंचे थे और अभी एक होटल रूम में ठहरे थे। सलीम न्याजी ने अपने स्टोर को बहुत हद तक मख्फी रखने की कोशिश की थी। लाहौर और फैसलाबाद में पहले ही बहुत रिश्वत दे चुके हैं, और अब रिश्वत खाने वाले अपने औकात से ज़्यादा मांग रहे हैं, और फिर सियासत में भी एक एक चीज़ पर नज़र रखनी पड़ती है। गैर कानूनी कामों के लिए अब कोई नई जगह ही चाहिए थी। यहाँ हम पर कोई शक नहीं कर सकेगा। सलीम न्याजी सियासत के साथ साथ अपने गैर कानूनी काम भी जारी रखे हुए था।
آج کے دور میں میڈیا نے جتنی ترقی کی تھی وہ بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث افراد کے لیے پریشانی کا باعث تھا، جس میں ایک سلیم نیازی بھی تھا۔ یوں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پچھلے 1 سال میں اسے جتنی سیاسی کامیابی حاصل ہوئی تھی، اتنا ہی اس کو اپنے غیر قانونی کام میں پریشانی ہوئی تھی۔ اس کے بہت سے اڈے جہاں پر جعلی ادویات بنائی جاتی تھیں، اور صرف یہی نہیں، اور بھی جن غیر قانونی کاموں میں ملوث تھا، سب پر چھاپے پڑ رہے تھے۔ رشوت اور سفارش کے باوجود بھی اس کے کام میں مداخلت کی جا رہی تھی، جس کا حل اس نے اب یہ نکالا کہ وہ نیا ٹھکانہ ڈھونڈ کر وہاں سے سب دوبارہ شروع کرے گا۔ جتنی دولت وہ کما چکا تھا، اس میں پڑنے کی اسے ضرورت تو نہیں تھی، لیکن اپنے لالچ کا کیا کرتا، جسے زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرنے کی چاہ تھی۔ بہت سے پارٹنرز اسے جھگڑا کر کے اب وہ اکیلا ہی یہ کام کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے شک تھا کوئی اپنا ہی ہے جو ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ چکا ہے۔ جی بہتر۔ منشی کے من میں اور بھی سوال تھے، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ کمپنی کے مالک کو فون کر کے کل کی میٹنگ ڈن کرو، کل رات کی فلائٹ سے ہمیں واپس جانا ہے۔ جی صاحب، سلیم نیازی نے کہا تو منشی فون نکالتے ہوئے بولا۔ اب اس کا ارادہ یہ کام کسی اور طریقے سے کرنے کا تھا۔ وہ ایک پوری کمپنی خریدنا چاہتا تھا، یا پارٹنر بن کر پیچھے رہ کر، یعنی خود کو مخفی رکھ کر کرنے کا پلان تھا، جس کے لیے اسے ایک خاص آدمی نے اسے ایک کمپنی کا متعلق بتایا تھا، جس کا نام دی ملک سنس تھا۔ سب باتوں کو جھٹک کر فرحاد نے اپنے کپڑے نکالے اور آفس جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو اماں فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں۔ یہ لڑکا تو میری سمجھ سے باہر ہے، اس چڑیل کی یاد کیسے آ گئی اتنے سال بعد؟ اور جناب کے لہجے میں محبت ہے، فکر ہے، مجھ سے ہی لڑ رہا ہے اس کے لیے۔ ان کی بات پر فرحاد نے گہری سانس بھری۔ یقیناً فہیم بھائی کو اب اس کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ ان کی نظر سے بچتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اماں آپ جانے کب سمجھیں گی؟ پتہ نہیں سمجھیں گی بھی یا نہیں۔ آپ نے تو اس معاملے میں بابا کو بھی معاف نہ کیا تھا، پھر میں کیا چیز ہوں؟ فرحاد ماں کی طرف سے نا امید سا ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو کیسے سمجھائے۔ وہ خوش نہیں تھی تو اس کی خوشی بھی ادھوری تھی۔ ان کی خوش اور چاہت کے بنا وہ پورے دل کے ساتھ خوش اور مطمئن نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا کرتا؟ ماں تھیں، اور ماں سے محبت سب کو ہوتی ہے، چاہے وہ اولاد کی خوشی کا خیال کرے یا نہ کرے۔ ماں کا درجہ تو ویسے ہی رہتا ہے، اس سے نفرت تو نہیں ہو سکتی نا۔ اپنی ایک خوشی کے لیے ہم وہ سب نظر انداز نہیں کر سکتے جو وہ ہمارے لیے کرتی ہے۔ یا اللہ، اماں کا معاملہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی ان کے دل میں رحم ڈال دے اور میرے معاملے کو حل فرما دے۔ فرحاد نے دل سے دعا کی تھی۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتا وہ انہی سوچوں میں گم آفس پہنچا تھا۔ آفس پہنچ کر وہ اپنے روم تک جا رہا تھا جب اسامہ بھی سب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی اور سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بابر صاحب سے کچھ معاملات پر تفصیلی بات چیت ہو رہی تھی۔ سر، کل وہ نیازی کے ساتھ کل کی میٹنگ فائنل ہو چکی ہے۔ کل صبح 10 بجے آئیں گے وہ۔ آپ ان سے میٹنگ کریے، پھر جو بھی بات طے ہوگی مجھے انفارم کر دیجیے گا۔ فرحاد نے فائل جو دیکھ رہا تھا ٹیبل پر رکھی۔ کیا مطلب سر؟ کیا آپ نہیں ہوں گے؟ بابر صاحب نے فرحاد کے جواب پر حیران ہوتے ہوئے تو پوچھے بنا نہ رہ سکے۔ نہیں، مجھے کل لاہور جانا ہے، تو میٹنگ آپ ہی اٹینڈ کریں گے۔ فرحاد نے انہیں دیکھا۔ لیکن سر… لیکن کیا بابر صاحب؟ آپ پہلے بھی میری جگہ میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کمپنی کے معاملات بھی آپ نے ہی دیکھے ہیں۔ اس نے ان کی بات کاٹی۔ جی سر، لیکن وہ الگ بات تھی۔ ابھی وہ اس کمپنی میں پارٹنرشپ کے لیے میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ… بابر صاحب جھجکے تھے۔ بابر صاحب… فرحاد نے پھر ان کی بات کاٹی۔ جی؟ بابر صاحب نے خاموش ہو کر انہیں دیکھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اور آپ بے فکر ہو کر میٹنگ اٹینڈ کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ ویسے میں ان کی پروفائل پڑھ چکا ہوں، مجھے ایسی کوئی قابل گرفت بات نہیں لگی۔ فرحاد نے انہیں تسلی دی۔ جی ٹھیک ہے سر۔ بابر صاحب نے سر ہلایا۔ اور کیا مس فارا آئی ہیں؟ مس فارا؟ نو سر۔ بابر صاحب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اچھا، انہیں فون ملائیے اور آفس آنے کا کہیں۔ بابر صاحب کو اس کی بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ جو کچھ کل ہوا تھا، انہیں لگا تھا فارا کو جاب سے نکال دیا جائے گا، بلکہ نکال دینا چاہیے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی، جس کا عکس تذبذب بھرے تاثرات کی صورت ان کے چہرے پر آیا تو فرحاد پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ مسئلہ ہے بابر صاحب؟ آخری فیصلہ تو آپ کا ہی ہوگا، لیکن کل ان کا جو رویہ مجھے لگا، ان کے لیے آفس میں جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ بابر صاحب کا لہجہ صاف تھا۔ تو اسامہ کے بارے میں بھی آپ کا یہی خیال ہوگا؟ فرحاد نے پرسوچ انداز میں انہیں دیکھا۔ نہیں سر، مجھے اسامہ اس میں اتنے قصوروار نہیں لگے، اور مس فارا نے آپ سے بدتمیزی کی تھی۔ بابر صاحب، آپ فارا کو فون کر کے آفس آنے کا کہیے، اور اسامہ کو میرے روم میں بھیجیں۔ فرحاد نے دو ٹوک انداز میں کہا تو وہ خاموشی سے سر ہلا کر باہر نکل گئے۔
यस सर। कुछ देर बाद उसामा उसके रूम में मौजूद था। फरहाद ने हाथ के इशारे से उसे बैठने का कहा तो वो बैठ गया। आपको यहाँ जॉब करते कितना अर्सा हुआ है? सर 1 माह से कुछ दिन ऊपर हुए हैं। उसामा उलझन भरे अंदाज में उसे देख रहा था। यानी आप 1 मंथ की पे ले चुके हैं? फरहाद ने एक अब्रू अचकाकर उसे देखा। जी सर। उसामा को उस सवाल का मकसद समझ नहीं आया। ओके उसामा, मैंने आपको रिदा के कहने पर अपॉइंट किया था, लेकिन मैं आपकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हूँ, सो आप इस जॉब को जारी नहीं रख सकते। फरहाद उस पर निगाहें जमा कर फूला था। लेकिन सर, मैंने इतनी मेहनत की, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? फरहाद के हतमी लहजे में कही बात पर वो कुछ सेकंड तो खामोश रह गया। सॉरी उसामा, डोंट माइंड, ये मेरा आखिरी फैसला है। फरहाद का अंदाज कतई हुआ था। ओके, वो उखड़े अंदाज से बोलता उठा था और बाहर निकल गया। सर, आपने उसामा को जॉब से निकाल दिया? बाबर साहब ने हैरानगी से अंदर आते हुए पूछा था। जी। फरहाद मोबाइल में मसरूफ था, गर्दन उठाए बगैर जवाब दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि इसकी कारकर्दगी इतनी काबिल सताइश नहीं थी, इसलिए। फरहाद ने संजीदगी से कहते हुए सर उठाकर उन्हें देखा। लेकिन सर, बाबर साहब, आपको फारा को कॉल करने का कहा था, क्या हुआ? फरहाद ने उनकी बात काटी। जी सर, उन्होंने कॉल नहीं उठाई। ओके, दोबारा कॉल करिए इनको मेरे सामने। ओके सर। बाबर साहब ने कहकर मोबाइल में फारा का नंबर डायल करने लगे। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। फारा का मूड बहुत ख़राब हो चुका था और मूड की बहाली के लिए उसके पास कोई ज़रिया भी ना था। सोहा होती तो उसके साथ ही बातें कर लेती तो कुछ तो मूड बेहतर होता। वो यूं ही बेड पर लेटी थी, मोबाइल भी पास ही पड़ा था। फ़ोन बजने पर उसने नहीं उठाया, बल्कि नंबर भी ना देखा कि फ़ोन किसका है। कुछ देर बाद फिर बजा तो उसने बेजारी से हाथ लंबा करके फ़ोन पास घसीटा। बाबर साहब की कॉल आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने कॉल पिक कर ली और यूं ही लेटे हुए फ़ोन कान से लगाया। वालेकुम सलाम। मिस फारा, आप आज ऑफिस नहीं आई? बाबर साहब ने कहते हुए फरहाद की जानिब देखा जो उन्हें ही देख रहा था। जी सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उनके सवाल पर फारा जी भर कर हैरान हुई थी। आज से पहले तो कभी बाबर साहब ने उसे फ़ोन नहीं किया था। चलो फ़ोन कर भी लिया, लेकिन सिर्फ ये पूछने के लिए कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई, बहुत हैरानकुन बात थी। मिस फारा, आपको कल लाजमी ऑफिस आना होगा, क्योंकि आप पहले ही काफ़ी छुट्टियां कर चुकी हैं। मज़ीद छुट्टियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जी सर, मैं कल ऑफिस आऊँगी। उनकी बात पर उसने कहा। वैसे भी फारा को खुद उन पर अपना कल का रवैया कुछ अच्छा ना लगा था। उसे लग रहा था उसामा के साथ उसने कल कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया था। इतनी इमेच्योर वो कभी भी ना रही थी, जाने क्यों। अब उसे वो इतना गुस्सा करने लगी थी और गुस्से में चीज़ें उससे ख़राब हो रही थी। सो वो सोच चुकी थी कि ऑफिस नॉर्मल जाया करेगी और फजूल बातों और फजूल लोगों को खुद पर इतना सवार नहीं करेगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। बाबर साहब ने उसकी बात का मुख्तसर जवाब देते हुए कहा। अल्लाह हाफिज़। फ़ोन बंद हुआ तो फारा ने फ़ोन को फिर परे कर दिया और यूं ही बेमकसद कभी छत को देखती कभी सामने। यूं तो मैं पागल हो जाऊंगी कमरे में बंद रह के, फारा ने थके जहन के साथ सोचा था और बाहर जाने के लिए सोचने लगी। लेकिन बाहर जाने का भी दिल नहीं कर रहा था। अकेली जाती भी तो कहाँ जाती, भूख भी लग रही थी, लेकिन दिल हर चीज़ से उचाट था। अजीब बेचैनी भरी कैफियत ने दिलो दिमाग को घेर में लिया हुआ था। सर, वो कल आएंगी, बाबर साहब ने फ़ोन रखकर कहा तो फरहाद ने सर हिलाया। लेकिन बाबर साहब उलझन में थे कि उसामा को जॉब से क्यों निकाला। अगर किसी को निकालना था तो वो फारा को होना चाहिए था, क्योंकि कल उसने फरहाद के साथ भी बदतमीजी की थी। फरहाद किसी हद तक उनकी उलझन जानता था। फरहाद ने लैपटॉप पर कुछ ओपन किया और उसको घुमाकर बाबर साहब के सामने किया। बाबर साहब ने स्क्रीन पर नजरें जमाई जहाँ पर कैमरे की रिकॉर्डिंग चल रही थी, फॉरवर्ड में। लेकिन वो सब आसानी से देख और समझ रहे थे। ये उस कैमरे की रिकॉर्डिंग थी जो फारा के डिपार्टमेंट में लगा था। उसमें बआसानी सब नजर आ रहा था। उसामा, फारा और बाकी के कुलीग्स। कुछ देर स्क्रीन पर देखने के बाद बाबर साहब ने सवालिया नजरें उठाकर उन्हें देखा। गौर से देखिए बाबर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? बाबर साहब ने उलझन भरे अंदाज में दोबारा लैपटॉप की जानिब देखा। वो कुछ देर देखते रहे। देखने के साथ साथ उनके चेहरे के तासुरात भी बदलते रहे। रिकॉर्डिंग वीडियो में फारा मुसलसल काम कर रही थी। उसामा आराम से बैठा कभी मोबाइल में कभी कंप्यूटर पर मसरूफ था और ऑफिस रूम से जो फाइल लेकर निकलता वो फारा को देता, या फारा जो फाइल तैयार करती वो उठाकर उनके कमरे की जानिब आता और जाहिर यूँ करता कि ये सब उसने ही किया हो। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हो रहा था, क्योंकि मुख्तलिफ दिनों की रिकॉर्डिंग थी और हर रिकॉर्डिंग में उसामा का अंदाज एक जैसा था। वो 10 मिनट तक देखते रहे। फरहाद खामोशी से बैठा पेपर वेट घुमाता रहा। ये सब देखकर क्या समझ आया बाबर साहब? बहुत कुछ सर। उनके लहजे में हल्की सी शर्मिंदगी थी। उन्हें किस हद तक ये भी समझ आ गया कि कल फारा उसामा के साथ चढ़ने की क्या वजह हो सकती थी।
ورنہ وہ یہ بھی مانتی تھی کہ فارا ایک محنتی اور کام کرنے والی لڑکی ہے۔ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں اور تجربے میں بھی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کی رائے کو اہم مانتا ہوں، لیکن آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ میں جھوٹ اور بے ایمانی بالکل پسند نہیں کرتا۔ بھلے ہی میں آفس نہیں آتا، لیکن میری ہر چیز پر نظر ہوتی ہے۔ فرحاد نے انہیں بہت کچھ واضح کیا تھا۔ بابر صاحب خاموشی سے سن رہے تھے۔ آپ جائیے بابر صاحب، اور جا کر کل کی میٹنگ کی تیاری کے لیے۔ مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے۔ آخر میں فرحاد نے ان کو دیکھا اور تو بابر صاحب کا اعتماد مزید بحال ہوا تھا۔ جی سر، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے فرحاد گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ موبائل بجا تو وہ سوچوں سے باہر نکلا۔ نمبر دیکھا تو بھائی کا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ فرحاد نے گہری سانس بھر کر کال اٹینڈ کی تھی۔ کسی حد تک بھائی کے فون کرنے کا مقصد جانتا تھا۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، میں ٹھیک الحمدللہ، تم کیسے ہو؟ ان کی آواز جوش میں بلند تھی اور لفظوں پر خوب زور ڈالا گیا تھا۔ فرحاد جانتا تھا وہ اسے چھیڑنے کو ایسا بول رہے تھے۔ وہ کہہ کر پھر ہنسے تھے۔ ان کے انداز پر فرحاد کا بھی قہقہ نکل گیا۔ یہ بتا کیا کر دیا تو نے؟ بلکہ کیسے؟ مجھے تو کہہ رہا تھا ابھی کچھ پتہ نہیں اور اماں سے ملوا بھی دیا۔ کچھ لمحوں بعد ہنسی تھمی تو پھر بولے، لیکن فہیم بھائی کے لہجے میں ابھی بھی ہنسی کی کھنک سی تھی۔ بس معلوم نہیں کیسے ہو گیا، لیکن میں نے شکر ہی ادا کیا کہ چلو یہ کام بھی جلدی نمٹ گیا۔ فرحاد گہری سانس بھر کر بولا۔ ابھی کہاں نمٹ گیا بھائی، ابھی تو اور مشکل وقت شروع ہونا ہے، فہیم بھائی نے مزے لے کر کہا۔ ہاں جانتا ہوں، لیکن اماں کو بتانا بھی تو ایک مشکل مرحلہ ہی تھا نا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ اماں بہت ناراض ہیں۔ وہ سیریس تھا۔ فہیم بھائی نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ جانتا ہوں، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اماں یوں سرپرائز کر دیں گی۔ بس پھر سب خود بخود ہو گیا۔ چلو وہ تو ہو گیا، اماں آ گئی، تم نے اس کے ساتھ دیکھ لیا، لیکن تم نے اماں سے کیا بات کی؟ جب میری تم سے بات ہوئی تھی اس وقت تو تم نے کچھ اور کہا تھا۔ فہیم نے تفصیل جاننا چاہی۔ بھائی سب بتاؤں گا، لیکن جب پاکستان آئیں گے۔ فرحاد پیپر ویٹ گھماتے ہوئے بولا۔ تو پکڑو پھر اماں کے ساتھ فلائٹ لاہور کی، کیونکہ میں پرسوں رات کی فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ کیا واقعی؟ فرحاد کو یقین نہ آیا۔ پیپر ویٹ گھماتا اس کا ہاتھ تھما تھا۔ ہاں یار، دینا تو مجھے تم لوگوں کو سرپرائز تھا، لیکن کیا پتہ یہ سرپرائز بھی تم پر بھاری نہ پڑ جائے۔ خیر اماں کو مت بتانا۔ فہیم بھائی نے اسے یقین دہانی کروائی۔ ٹھیک ہے، بس اماں اب جانے پر راضی ہو جائیں۔ فرحاد کو نئی فکر ہو رہی تھی، اب جانے اماں واپس جانے کو راضی ہوتی ہیں یا نہیں۔ خیر وہ تو اب تمہارا کام ہے۔ فہیم نے اسے چھیڑا۔ کچھ مزید ایک باتوں کے بعد فون بند ہو گیا۔ فرحاد نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر فون ٹیبل پر رکھا، کچھ دیر آفس کے کام کے متعلق فائل دیکھی، پھر بابر صاحب کو مطلع کر کے آفس سے نکل گیا۔ موسم اچھا تھا، خوشنما سی ہوا چل رہی تھی۔ گاڑی کا لاک کھولتے اس نے گہری سانس لے کر ہوا کو تازہ اندر اتارا تھا۔ فرحاد کے دو ٹوک اور واضح انکار پر اشال کا دل دکھا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے پہلی بار اسے انکار کیا تھا۔ تب بھی سمجھتے ہوئے بھی وہ حقیقت سے نظریں چرا رہی تھی، اب بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ لیکن فرق یہ تھا، جب اس وقت فرحاد نے اس سے رشتہ ختم کیا تھا تب وجہ صرف یہ تھی کہ وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو سب جانتے تھے کہ ندیم ملک کے وفات کے بعد وہ بہت بدل گیا تھا، جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی تھی، اپنے باپ کے قتل کا انصاف مانگنے کے لیے، قاتل کو سزا دلوانے کے لیے۔ فرحاد اور فہیم دونوں نے ہی ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، لیکن ان سب کی محنت، وقت، پیسہ برباد ہوا تھا، انہیں انصاف نہیں ملا تھا۔ الٹا فہیم پر دوبارہ حملہ ہوا تھا، صرف اس لیے کہ وہ کیس واپس لے لیں۔ تب اماں نے رو رو کر دونوں کو اس معاملے سے پیچھے کیا تھا۔ فہیم کو فیملی سمیت باہر شفٹ کر دیا گیا اور فرحاد اس وقت سب سے ناراض تھا۔ 1 سال سے وہ اپنے باپ کے انصاف کے لیے در در کی خاک چھان رہے تھے، لیکن انصاف تو دور کی بات، اس معاملے میں تاریخوں سے بات آگے نہ بڑھی تھی۔ وہ مایوس ہوا تھا۔ بابا جب اس دنیا سے گئے تھے تب اس سے ناراض تھے۔ یہ دکھ اسے برچی کی طرح اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا، اور گزرتے وقت میں اس دکھ میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ انہی دنوں طارق صاحب اشال کی شادی کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہونا چاہتے تھے۔ فارا کو تو فرحاد خود ہی نکال چکا تھا، اور 1 سال ہو چکا تھا اس بات کو، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، کہاں گئی کدھر تھی۔ سو اشال اور فرحاد کی شادی میں اب کوئی رکاوٹ نہ تھی، کسی کو بھی اب کسی قسم کا اعتراض نہیں تھا۔ اماں نے فہیم سے مشورہ کیا۔ اس وقت فرحاد کی حالت ایسی تھی کہ انہیں یہ فیصلہ صحیح لگا تھا۔ اس سے فرحاد اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن ہوتا اور اس کا دھیان باپ کی موت سے ہٹتا۔ وہ سب آپس میں ہی سبھی فائنل کر چکے تھے۔ فہیم بھی شادی کے لیے پاکستان آ رہا تھا، لیکن جب فرحت بیگم نے اس سے بات کی تو فرحاد کے جواب نے ان سب کو اپنی جگہ سکتے میں ڈال دیا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، ابھی بالکل نہیں، سوچوں گا کبھی جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے صاف لہجے میں انکار کیا تھا۔ یہ کیا جواب ہے؟ اشال کا یوں ہی ساری عمر بیٹھی رہے گی؟ فرحت بیگم کو اس جواب کی بالکل امید نہیں تھی۔ انہوں نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا۔
किसने कहा उसे मेरे लिए बिठाएं? आप खालू जान से बात करके उसकी शादी कहीं और करवा दें। फरहाद ने हाथ उठाकर कहा, उसे जैसे इस चीज़ से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। तुम पागल हो गए हो? मालूम भी है क्या बक रहे हो? फरहत बेगम इसे यूं देखा जैसे वो वाकई पागल हो गया है। उन्हें फरहाद पर गुस्सा आने लगा। जो भी कहें अम्मा, मैं शादी नहीं करना चाहता। फरहाद का जवाब वही था, लहजा एकदम कतई था। शादी नहीं करना चाहते या इशाल से ही नहीं करना चाहते? फरहत बेगम ने गुस्से से उसे घूरा। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। प्लीज़ अम्मा, मेरे सामने बार बार शादी का जिक्र मत करें। मुझे, फरहाद ने आगे लब खींचते थे। वो कहना चाहता था, मुझे बाबा याद आते हैं, और फिर उनकी नाराज़गी याद आती है, और जिस दिन उनकी मौत हुई उनके आखिरी सुबह जो अल्फाज उन्होंने उससे कहे थे, तुम झूठे हो, अपनी ज़ुबान से फिरने वाले इंसान हो। ये अल्फाज उसके दिल में किसी जहर भरे तीर की तरह गड़ चुके थे, और ये ऐसा जहर था जो जान भी नहीं निकाल रहा था, लेकिन तकलीफ ऐसे ही देता था जैसे जान निकल रही हो, लेकिन जान निकलती नहीं थी। उसे सब याद आता था, और जब याद आता था तो एक अजियत सी कैफियत पूरे दिलो दिमाग को घेर लेती थी। तब दर्द और बढ़ जाता था। इस सुबह वो उससे नाराज़ थे। जब वो इस दुनिया से गए तो वो अपने दिल में उसके लिए नफरत लेकर गए थे। वो उससे मायूस थे, उसकी वजह से दुखी थे। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर ख़त्म कर रहा था। उसे पछतावा था, वो उन्हें मना नहीं सका। जब उन्हें अपने हाथों से आखिरी गुस्ल दे रहा था, उसके दिल पर क़यामत बरपा थी, और जब उन पर पहली मुट्ठी मिट्टी की डाली, उसका दिल चाहा कुछ भी हो जाए, कोई मौजज़ा अनहोनी, बस बाबा उठ जाएं, वापस आ जाएं, कुदरत का निज़ाम उलट पुलट हो जाए। लेकिन कुछ ना हुआ, सिवाय दिल की अजियत बढ़ने के। कभी कभी इंसान को सामने की बातें समझ नहीं आती, लेकिन जब वक्त गुजर जाता है, कोई अपना हमसे इतनी दूर चला जाता है, वहाँ जहाँ उसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं हो सकता, तो हम सोचते हैं कि कितनी छोटी बात के लिए अपने प्यारे को हमने दुखी किया, दर्द दिया था। काश हम उसकी बात मान लेते। काश, ये काश सारी उम्र के लिए दिल में गड़ा रह जाता है, दिमाग और दिल में गर्दिश करता रहता है। उसके शादी ना करने के फैसले पर फरहत बेगम ने उससे बात करना छोड़ दी। फ़हीम भाई ने अलग उसे दिन रात फ़ोन करके समझाया। उसने उनके फ़ोन ही उठाना छोड़ दिए, और आखिर में इशाल से बात हुई। तुम बहुत बदल गए हो फरहाद। इशाल के अंदाज में खफगी थी, दुख था। इसीलिए तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, फरहाद ने उसे साफ लहजे में कहा। इशाल को उसके अल्फाज ने तकलीफ दी थी। मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहती हूँ फरहाद, हम दोस्त भी तो हैं ना, हम मिलकर लड़ेंगे, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा करूँगी, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन प्लीज़ ये बात मत करो। इशाल ने दर्द भरे लहजे में इल्तिजा की। ऐसा नहीं हो सकता इशाल, हम सिर्फ दोस्त हैं, इसके अलावा मैं तुम्हें किसी और रिश्ते की कोई उम्मीद नहीं देना चाहता। ना चाहते हुए भी फरहाद को अपना अंदाज सख्त करना पड़ा। उम्मीद तो तुमने मुझे इतने सालों पहले दी थी, अभी तुम सिर्फ परेशान हो, सुकून से सोचो, इतनी जल्दी फैसला मत करो। इशाल पर उसकी सख्ती भरे लहजे का रत्ती भरा असर ना हुआ था, उल्टा उसे समझाने लगी। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है, और बिलफर्ज शादी हो भी जाती है तो मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा, फिर तकलीफ़ और बढ़ जाएगी, तुम्हारी भी और मेरी भी। आखिर में फरहाद का लहजा धीमा हुआ था। कैसी बातें कर रहे हो फरहाद, इतने करीब आकर तुम मुझे छोड़ रहे हो, मेरा क्या कसूर है, प्लीज़ मत करो ऐसा। इशाल दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर रोने लगी। फरहाद ने लब खींच लिए। ज़िंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जब इंसान को ना चाहते हुए भी अनचाहे फैसले करने पड़ते हैं, और फिर इन फैसलों पर डट कर खड़ा होना पड़ता है, फिर चाहे हम कितनी ही तकलीफ से क्यों ना गुजर रहे हों। इस वक्त फरहाद अपने दिल की किसी बात को किसी को नहीं समझा सकता था। ज़ख्मी दिल, टूटे जज्बात, हर तरफ मायूसी थी, और अपनी बेचैनी का सदेबाप वो जल्द ही जान गया था। और जब जान गया तो फरहाद उनकी ज़िंदगी में होकर भी नहीं था। दिन रात वो सब कुछ भुला चुका था। फ़हीम भाई, भाभी और अम्मा उसकी जानिब से परेशान थे, लेकिन वो जैसे सबकी परवाह छोड़ चुका था। लेकिन उससे जुड़े रिश्तों ने उसकी परवाह नहीं छोड़ी थी। उनमें एक इशाल भी थी, जो उस वक्त तो चुप कर गई। तारिक साहब ने लाख उसे शादी की तरफ लाना चाहा, लेकिन उसकी ना हाँ में ना बदली। वो अब भी फरहाद से उम्मीद लगाए हुए भी थी, सब जानते और समझते हुए भी सब नज़रअंदाज कर रही थी। एक बार फिर फरहाद ने उसे समझाना चाहा, इनकार किया था, लेकिन इस इनकार की वजह ने उसे और ज़्यादा तकलीफ दी, क्योंकि अब वजह फारा थी, और इस नाम से इशाल के दिलो दिमाग में हिजान बरपा हुआ था। उस फारा के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो फरहाद, उस लड़की को तुम मेरे मुकाबले ला रहे हो जिसका मुझसे मुकाबला ही नहीं बनता। ऐसा नहीं होगा फरहाद, मैं आखिरी दम तक हार नहीं मानूंगी, खोलते दिलो दिमाग से उसने सोचा था। फरहत बेगम ने फ़हीम से कह सुनकर अपनी भड़ास तो निकाल ली थी, लेकिन सुकून फिर भी ना हुआ। अगर फरहाद ने सच में अपना कहा पूरा कर दिया तो
इस सोच में उनको झुरझुरी आई थी। इशाल काफ़ी देर से कमरा बंद किए बैठी थी। वो भी बाहर ना आई कि उससे बात करके मजीद कुछ भड़ास निकाल लेती। उन्होंने मुलाजिम के हाथ काफ़ी बार उसे पैगाम भेजा, लेकिन वो नहीं आई। शाम के साए फैल चुके थे। वो अकेली बैठी थी। जहन मुख्तलिफ सोचों की माज का बना हुआ था। इशाल हनूस कमरे में बंद थी। फरहत बेगम भी उसके एहसास को समझती थी, लेकिन उनके समझने से क्या होता है जब फरहाद ही नहीं समझ रहा था। इशाल उन्हें फरहाद और फ़हीम की तरह ही अजीज़ थी और वो दिल से उसकी खुशी चाहती थी। अकेले बैठे कभी एक सोच जहन में आती, कभी कोई और ख्याल बहने लगता। जब से वो लड़की हमारी जिंदगियों में आई है, कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब भी मैं और इशाल कितनी खुशी से आए थे, क्या क्या ना सोचा था कि वो चुड़ैल आ गई। हमारी खुशियों को खाने वाली चुड़ैल है। सब सोचों की तान फारा को बुरा भला कहने पर टूटती थी। वो बुलंद आवाज में बड़बड़ाई थी, अब उसे चुड़ैल तो मत कहें, चुड़ैलें इतनी खूबसूरत तो नहीं होती। फरहाद को वहां आकर बैठे 5 मिनट हो गए थे। अम्मा अपनी सोचों में इतनी गर्क थी कि उन्हें उसकी मौजूदगी का पता न लगा, और फरहाद को उनकी बुलंद आवाज़ सोच के इजहार पर सिर्फ ये चुड़ैल वाली बात ही काबिल गिरफ्त लगी थी, तो बोले बिना न रह पाया। खूबसूरत? किसने कहा वो खूबसूरत है? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे दुनिया ना देखी हो। अम्मा को उसका फारा की तरफ दारी करना आग ही लगा दिया था। वो तंज करते हुए बोली, अच्छी बात है ना, मुझे अपनी बीवी ही खूबसूरत लगती है, किसी और की नहीं, वरना बहुत मसला हो जाता। फरहाद ने बात को मजाकिया रुख देना चाहा। जाने क्या सबक पढ़ा है, कौन सा जादू कर दिया तुम पर, मेरी तो समझ से बाहर है सब कुछ। अम्मा को उसकी बात बिल्कुल पसंद ना आई थी। वो नाक भर में चढ़ाकर बोली, तुम मत समझे ना कुछ, जो मैं कह रहा हूँ मान जाएं प्लीज़। फरहाद ने इल्तिजाई लहजे में कहकर उनका हाथ पकड़ा। क्या पता अम्मा प्यार मिन्नत से मान जाती, लेकिन इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि इतनी जल्दी सुनी जाती। अम्मा ने उसका हाथ फौरन झटका था। खाला जान, आप बुला रही थी? इससे पहले कि अम्मा उसे सख्त मजीद सुनाती, इशाल के आने से उनके अल्फाज मुंह में ही दब गए। हाँ, वो तुम काफ़ी देर से बाहर नहीं आई थी ना, इसलिए पूछा था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? कुछ पल तो अम्मा को समझ ही ना आया क्या बोलें। फरहाद की बातों ने उनका दिमाग घुमा दिया था। फरहाद गहरी सांस लेकर पीछे हो बैठा। उसने इशाल पर सरसरी नज़र भी न डाली थी। जी ठीक हूँ, वो सता हुआ चेहरा लिए बोली। अम्मा, कल सुबह की टिकट करवा ली है लाहौर की, पैकिंग कर लीजिएगा। फरहाद सोफे से उठता हुआ बोला था। उसने इशाल को इग्नोर किया, जो इशाल को बहुत अच्छे से महसूस हुआ था। वो जले दिल के साथ पानी पीने किचन में गई थी। तू अब मुझे अपने घर से निकल जाने का कह रहा है? अम्मा का दिमाग जो पहले ही गुस्से से घुमा हुआ था, उसकी बात पर मजीद छटका था। अम्मा, जब मैं ही यहाँ नहीं होऊंगा तो आप क्या करेंगी अकेली? मैं भी लाहौर ही जा रहा हूँ। फरहाद ने गहरी सांस भरकर उन्हें देखा था। इसकी बात पर उन्होंने बुरा से मुंह बनाया। इतनी बदगुमान हो गई हैं मुझसे? फरहाद को उनके अंदाज ने दुखी किया था। उसने नाराजगी भरी निगाह उन पर डाली थी। माँ की बदगुमानी की इतनी फिक्र है तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि मैं ये सब सोचूं? उन्होंने भी फरहाद के शिकवे का जवाब शिकवे भरे अंदाज में ही दिया था। फरहाद ने लब भींचकर खुद को मजीद कुछ और बात कहने से रोका था। खाना खाकर दवाई टाइम से खा लीजिएगा। इतनी बात कहकर वो रुका नहीं, और कुछ देर बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई थी। फरहत बेगम का चेहरा उसके जाते साथ ही बुझ गया था। उसके सामने जैसे मर्जी नाराज़गी दिखा रही थी, लेकिन थी तो माँ ही ना। और इस पल फरहत बेगम को अंदर से एक एहसास हुआ था कि अगर इस मामले में फरहाद यूं ही ज़िद करता रहा, उनको भी उसकी ज़िद के आगे हार मानना पड़ेगी, चाहे दिल से ना सही, लेकिन बेटे के लिए वो ये कर लेंगी। जाने क्यों उन्हें ऐसा लगा था। अब पहले जैसी हिम्मत और तनतना भी कहाँ रहा था, लेकिन फिर भी हार मानने से पहले अपनी सी कोशिश करनी ही थी उन्होंने। फरहाद का दिल हर चीज़ से उचाट हो रहा था। हर बार की तरह अब भी अम्मा से बहस ने मूड पर कुछ अच्छा असर न डाला था, और अब जाने वाले कल में और कितनी बहस होने थी। जब अपने करीबी आपको ना समझे, आपके समझाने पर भी, तो बहुत तकलीफ़ होती है, और ये तकलीफ़ महसूस करके उसे बाबा की तकलीफ़ का एहसास होता था। वो किस अज़ियत से गुजरे होंगे जब उनकी बात घर में से किसी ने ना समझी। उसने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोकी। गाड़ी रुकते ही एक लड़का भागकर मेन्यू ले आया। फरहाद ने मेन्यू में से खाना ऑर्डर किया। लड़का 10 मिनट का इंतज़ार कहकर ऑर्डर लेने अंदर रेस्टोरेंट में चला गया। फरहाद ने पुरसोच निगाहें सामने आती जाती गाड़ियों से मसरूफ़ सड़क पर जमाई थी। फारा उसी तरह लेटी हुई थी। दिलो दिमाग हर शय से बेजार था। पेट में भूख की शिद्दत से अजीब सी पड़ते गिरों ने भी अब सब्र कर लिया था,
लेकिन फारा टस से मस ना हुई। कभी एक जानिब करवट लेती तो 2 घंटों बाद करवट बदलती। अभी उठकर सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी प्रेस करने थे। अगर नौकरी से निकाल देंगे तो क्या होगा? वो कहीं और जॉब कर लेगी, लेकिन कल ऑफिस लाजमी जाएगी। इतनी बुज़दिल नहीं थी कि वो इन हालात का सामना करने के बजाय भागे। ये उसने सोच लिया था। यूं ही सोई जागी कैफियत में बहुत कुछ सोचा था और बहुत सी सोचें दिमाग में चल रही थीं। कभी कोई सिचुएशन दिमाग में उभरती, कभी कोई, और ऐसा लगता वो इस वक्त उसी सिचुएशन में दिलो जान से घुसी हुई थी। फिर चाहे वो फरहाद के मुतल्लिक हो, जैसे अब उसने लोशन की बोतल मारी थी तो वो सही निशाने पर जाकर लगी थी तो वो सर पकड़े गुस्से से पलटा था, या उसामा के जिसमें अब उसने बोतल नहीं मारी थी बल्कि ऑफिस के टेरिस से धक्का दे दिया था, या फरहत बेगम के जिनको वो टिके टिके टका टका के सब जवाब दे रही थी और वो चाहते हुए भी कुछ बोल ना पा रही थी और फारा को सुनने पर मजबूर थी। फरहाद जब दरवाज़ा खोले अंदर आया। इसी किस्म के ख्यालात भरी नींद में वो आधी सोई आधी जागी थी, लेकिन देखने वाले को सोई ही लग रही थी। फरहाद ने खाने का सामान टेबल पर रखा और उसकी जानिब पलटा, जो ऊंधी लेटे हुए चेहरे को बाजुओं के घेरे में लिए छुपाए हुए थी। फरहाद ने उसके नज़दीक बैठकर उसके बालों को आहिस्तगी से सहलाया। वो टस से मस न हुई। मुझे कोई शौक नहीं है आपके उस वाहियात बेटे से शादी करने का। खुद को बहुत ऊंची शय समझता है। लड़कियां उसके पीछे मरती हैं तो मरती होंगी, लेकिन दोनों माँ बेटी की गलत फहमी है कि मैं उसके पीछे मरूंगी। अपना नालायक बदौक बेटा अपने पास संभाल कर रखें। कोई हीरे नहीं जड़े हुए उसमें कि मैं उसे हासिल करने के लिए मरी जाऊं। वो फरहत बेगम को ऐसी तीखी कड़वी बातें सुनाकर अपनी भड़ास निकाल रही थी। फारा, फारा। वो तो और भी सख्त सुनाने के मूड में थी, लेकिन उस आवाज़ ने उसके लफ्ज़ों का गला घोंटा था जो खासी करीब से आ रही थी। और जैसे जैसे उसके हवास बेदार हुए, सिर्फ आवाज़ ही नहीं, किसी का अपने सर पर हरकत करता हाथ भी महसूस होने लगा। फरहत बेगम गायब हो चुकी थी। वो सारी नींद भरी कैफियत और सिचुएशन भी भग से उड़ी थी। कमरे में कौन आ सकता है और इतने तकल्लुफ़ी से उसे कौन हाथ लगा सकता था? सोहा तो थी नहीं यहाँ। दरवाजे का लॉक उसने खुद बंद किया था। और आवाज़ किसकी थी भला? फारा को कुछ देर पहले आवाज़ देता लहजा भूल गया। उसने झटके से बालों को सहलाता हाथ पीछे किया और झटके से ही ऊंधी सी सीधी हो बैठी। तुम! फारा ने अपने सराहने बैठे फरहाद को आंखें फाड़ कर देखा। हाँ मैं? क्यों, क्या हुआ? फरहाद ने उसे इत्मीनान से देखा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अपनी हैरत छुपाकर फारा नागवारी से बोली। फिलहाल तो बैठा हूँ, लेकिन तुम चाहो तो कुछ और भी कर सकता हूँ। बैठ की पैर से टेक लगाकर वो रिलैक्स होकर बैठता हुआ बोला। तुम ये सब बकवास करके इंतहाई घटिया और गिरे हुए लग रहे हो। फारा ने उसे तैश भरे अंदाज में देखा, गोया उसकी हकीकत से उसे बाखबर करना चाहा। अगर ऐसा करके वो खुद को हीरो साबित कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत समझ रहा है। यानी सबसे पहले मेरे बारे में तुम्हारे ख्यालात अलग थे? ओह, वैसे कहीं तुम सुबह की बात तो नहीं करी? मतलब तुम्हें वो सब अच्छा लगा था? फरहाद पर उसकी बात का ज़रा असर न हुआ, बल्कि वो टांगें फैलाकर मजीद रिलैक्स हुआ था। तुम बातों को घुमाकर क्या साबित करना चाहते हो? जो हो ना तुम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बात से बात निकल रही थी और वो अंदर कैसे आया, फारा का ध्यान इस बात से हट गया। अच्छा, वाकई? तो क्या हूँ मैं? फरहाद ने सीने पर हाथ बांधकर उसे देखा। तुम इंतहाई घटिया, बदतमीज और वाहियात किस्म के इंसान हो। फारा कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन फिलवक्त यही लफ्ज़ याद आए थे। वाह वाह, कितने अच्छे से जान गई हो मुझे। इधर तो और इतनी तारीफ करने पर तुम इनाम के हकदार तो बनती हो। फरहाद ने उचक उसका हाथ पकड़ा कर अपनी जानिब घसीटा। फारा अपने ध्यान में बेड से नीचे उतरने के लिए बेड की दूसरी तरफ जा रही थी। उसकी इस हरकत के लिए बिल्कुल तैयार ना थी, लेकिन फिर भी फारा ने फरार की कोशिश की। वो अलग बात थी कि नाकाम हुई। अब बोलो, क्या कह रही थी? फारा की पश्च उसके सीने से लगी थी। फरहाद ने उसकी तरफ से बाजू लाकर उसके हाथों को बहुत कस के पकड़ा था और अपनी थोड़ी सी कंधे पर रखकर बोला, छोड़ो मुझे। इस कदर कुर्बत ने फारा को रूहानसा किया था। वो बहुत जोर लगा रही थी अपने हाथों को उसके हाथों से निकालने के लिए, लेकिन फरहाद की गिरफ्त सख्त थी। उल्टा उसके हाथों में ही दर्द शुरू हो गया था। फरहाद प्लीज़! आखिर में उसे मिन्नत ही करनी पड़ी। सॉरी बोलो पहले। फरहाद की गर्म सांसें उसके गाल को झुलसा रही थी। सॉरी, वो कुड़ते हुए बोली थी। फरहाद के फौलादी सीने के अंदर धड़कते दिल की धड़कन उसे बखूबी महसूस हो रही थी। और कहो कि तुम अब से मेरी हर बात मानोगी। फरहाद ने घेरा मजीद तंग किया, गोया से खुद में समोना चाहा। क्यों? वो तीखे अंदाज में बोली। अंदर से दिल सूखे पत्ते की माने लहरा रहा था। बहस करोगी ना तो आज रात बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आह, मेरा बाजू, बदतमीज इंसान! फरहाद ने कहते हुए गिरफ्त सख्ती की तो उसकी आह निकली। फरहाद की हरकत पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था और उसने बिला झिझक गुस्से का इजहार भी कर दिया।
तुम ये सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए करते हो ना? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? मैंने कभी कहा कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी जो तुम यूँ आ रहे हो मेरे घर? अच्छा सवाल है। दरअसल मुझे तुम पर तरस आ गया और फिर मेरी ज़मीर ने मुझे खूब मलामत की कि आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। उसके चीखने पर फरहाद ने गिरफ्त ढीली करते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं मुझ पर तरस खाने की। मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मुझसे हमदर्दी करो, मुझ पर तरस खाओ। नहीं चाहिए तुमसे कुछ भी। फरहाद की इस नई बात ने फारा को अंगारों पर खड़ा किया था। पर तुमने कहा है, तुम भूल गई हो हॉस्पिटल में, याद है? उस रात ही तो सब बदला था, वरना मैं तो खुद ये सब खत्म करने वाला था। उसके बरक्स फरहाद का अंदाज इत्मीनान भरा था। उसकी बात पर फारा को चुप लगी। उस रात मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरे लिए जो नाराज़गी और बेजारी दिखाती थी वो सब ऊपर ऊपर से था। वो मज़ीद बोल रहा था और फारा को साकित खामोश देकर उसकी गिरफ्त भी कमज़ोर हुई। है ना? फरहाद ने उसका जवाब जानना चाहा था। नहीं। उसने मौके का फ़ायदा उठाकर कोनी उसके पेट पर मारी थी। फरहाद को दर्द का भरपूर झटका लगा। फारा की कोनी उसके जख्म पर तो नहीं, लेकिन जख्म के करीब करीब ही लगी थी। आ फरहाद का हाथ बेख्तियार उस जानिब गया था जहां फारा की कोनी लगी थी। उसकी ढीली होती गिरफ्त का फ़ायदा उठाकर फारा उससे दूर हुई और जल्दी से बेड से उतरी थी और खासे फासले पर खड़ी होकर अपनी बेतरतीबी से धड़कते दिल को काबू करने लगी। उफ! फरहाद ने दर्द बर्दाश्त करते हुए बेड की पश्त से सर लगाया था। उसकी आवाज़ पर फारा ने उस पर नज़र डाली जो दर्द की शिद्दत से सुर्ख होता फरहाद का चेहरा उसे घबराहट में मुब्तला कर गया। फरहाद की आंखें बंद थीं और हाथ वहीं था जहां उसे चोट लगी थी। लब शिद्दत से भींचे हुए थे। उसी पल फारा को इदराक हुआ कि उसने क्या कर दिया है। हाँ, ये क्या हो गया? फारा का दिल डूबा था। बेख्तियार उसने दोनों हाथ अपने खुले मुंह पर रखे थे। अगर कोहनी फरहाद के स्टिचेस पर लग जाती तो? इस सोच के साथ ही फारा का दिल लरस गया था। जिस शिद्दत से उसने कोहनी मारी थी वो जानती थी। फरहाद, तुम ठीक हो? वो डरते डरते उसके करीब आई थी। फरहाद यूं ही बैठा रहा, उसकी बात का कोई जवाब न दिया। फारा की परेशानी मजीद बढ़ी थी। वो उसके पास बैठकर जहां उसका हाथ था आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगी। सॉरी, वो शर्मिंदा सी बोली थी। फरहाद खामोशी रहा। कुछ लम्हे यूं ही बीते थे। फारा को कुछ समझ न आई। इस पल सब भूल गया। मैं पानी लाती हूँ। वो जल्दी से किचन में गई, गिलास भरकर पानी ले आई। पानी पी लो फरहाद। उसने पानी का गिलास उसके लबों से लगाना चाहा तो फरहाद ने नफी में सर हिलाकर उसे मना कर दिया। फारा ने बुझे दिल के साथ गिलास साइड टेबल पर रख दिया। सॉरी फरहाद। फारा की शक्ल रोने वाली हुई थी। उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर वो सीधा होकर बैठा था। देखो, खून तो नहीं निकला? फरहाद के कहने पर फारा ने जल्दी से उसके हाथ के पास नजर डाली थी। नहीं, खून नहीं निकला। हल्के नीले रंग की कमीज साफ थी। फारा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। दर्द ज़्यादा हो रहा है? फारा के पूछने पर फरहाद ने उसे देखा। चेहरे पर फिक्र और परेशानी के तासुरात लिए वो उसे देखती जवाब की मुंतज़िर थी। हाँ, बहुत ज़्यादा। फरहाद ने झूठ बोला, जबकि दर्द में कमी हुई थी। अब इतना शदीद दर्द नहीं था जितना कोहनी लगने से एकदम हुआ था। उसका जवाब सुनकर वो और परेशान हुई। हॉस्पिटल चलें? लेकिन गाड़ी कौन चलाएगा? फरहाद तकलीफ भरे तासुरात समेत बोला। हम टैक्सी करवा लेते हैं। फारा ने फ़ौरन जवाब दिया। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। खून नहीं निकला, मतलब सब ठीक है। मेरे पास पेन किलर है, मैं वो खा लेता हूँ। वो रुक रुक कर बोल रहा था ताकि फारा को शक ना हो। कहाँ है मेडिसिन? मेरे पास ही है, लेकिन अभी खाना खाए बगैर नहीं खा सकता। हाँ, तुमने कुछ नहीं खाया? नहीं, मैं खाना लाया था, सोचा था मिलकर खाएंगे। अच्छा। उसकी बात के जवाब में वो कुछ पल खामोश रहने के बाद बोली। निकाल लाओ खाना। उसे बैठे देखकर फरहाद को ही कहना पड़ा। लाती हूँ। फरहाद ने फारा के अंदाज में वाज़ेह बदलाव महसूस किया था। जब वो तकलीफ में था वो सब भूलकर सिर्फ उसकी फिक्र में थी, लेकिन जैसे ही उसने कहा वो दोनों मिलकर खाएंगे, यानी उसकी और अपनी बात की, उसका अंदाज और तासुरात दोनों बदल गए थे। तुम नहीं खाओगे? तुम नहीं खाओगी? उसने खाने की ट्रे उसके पास रखी और पलट गई जब उसने पूछा। नहीं। वो पलटे बगैर ही बोली। क्यों? फरहाद ने देखा वो एकदम संजीदा थी। फारा कोई जवाब दिए बिना किचन में चली गई और दोबारा वापस आई। फरहाद उसका इंतजार करता रहा। उसे बाहर न आते देखकर वो खुद ही उठा था। दर्द वैसे भी काफ़ी हद तक कम हो गया था। वो अचानक लगने वाली चोट की तरह था जो वक्ती तौर पर बहुत महसूस हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था। जब वो किचन में गया तो वो किचन की खिड़की से बाहर अंधेरे में नजरें जमाए खड़ी थी। मैं भी ठीक हूँ, आपकी क्या हुआ? फरहाद किचन की दीवार से टेक लगाए खड़ा हुआ। फारा ने ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही उसकी बात का जवाब दिया। फरहाद,
मैं इस रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहती। मुझ पर दबाव मत डालो। इस सब से तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए ये सब बहुत तकलीफ़देह है। वो थके हुए लहजे में बोली थी, चेहरे पर रंजीदगी छाई थी, जैसे मजीद बहस करने या लड़ने की सकत ना हो। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा। मैं जानता हूँ तुम भी यही चाहती हो। फरहाद ने अपनी बात मुतमिन अंदाज में की थी। हर लड़की यही चाहती है कि उसका घर बसे और अपने शौहर की दी गई चार दीवारी में सुकून से रहे। मैं ये सब चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सब तुमसे नहीं चाहती। फारा के चेहरे से अजियत झलक रही थी, लेकिन लहजा एकदम साफ था। क्यों? उसके सवाल ने फारा को लब भींचने पर मजबूर किया था। वो क्यों इसकी बात को नहीं समझ रहा था, क्यों जानबूझकर अनजान बन रहा था। जो इंसान धक्के देकर बेइज्जत करके अपने घर से निकाले और फिर वही इंसान घर देने की बात करे तो यकीन नहीं आता, बल्कि मज़ीद तकलीफ़ होती है। फारा ने ज़ख्मी अंदाज में उसे देखा। मैं उस सब के लिए शर्मिंदा हूँ। तुम उस चीज़ के लिए मुझसे लड़ो, नाराज़ हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं अलग होने की बात पर एग्री नहीं करूँगा। फरहाद ने उसके करीब आते हुए कहा। क्यों नहीं करोगे तुम एग्री? ये मेरा हक है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। और यही सब करके तुमने सालों पहले भी तकलीफ़ दी थी और अब भी तकलीफ़ ही दे रहे हो। फारा उसकी एक ही रट सुनकर ज़ब्त खोलकर चिल्लाई थी। मुझसे अलग होकर तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन चाहती हो। कल मैंने तुम्हें ठुकराया था, तुम आज मुझे ठुकरा कर सिर्फ बदला लेना चाहती हो और कुछ नहीं। फरहाद ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, ऐसा ही है। उसकी बात तो फारा ने भी उसकी आंखों में देखकर कहा। तुम मर्द जब चाहो ज़बरदस्ती करके शादी करो, जब चाहो धक्के देकर निकालो और फिर जब दिल करे तो नज़दीकियाँ बढ़ाओ। इस सब में जानते हो क्या बीतती है हम पर? दिल करता है मर जाएं। अगर खुदकुशी जायज़ होती ना फरहाद मलिक, तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने नहीं होती। फारा के लफ्ज़ों से तकलीफ झलक रही थी। हाँ, किया मैंने ये सब, लेकिन अपनी गलती को मान भी तो रहा हूँ। फरहाद भी सब खोलकर बोला। एक बार सब भूलकर एतबार करके देखो, तुम्हें मायूसी नहीं होगी। मैं तुम्हें कभी। फरहाद ने नरम अंदाज में उसे समझाना चाहा। दोनों हाथों से कंधों को थामा हुआ था। अंदाज यकीन दिलाने वाला था। बेइज्जत करने वाला जब इज्जत देने की बात करे तो यकीन नहीं आता। वो जाने और क्या क्या कहता कि फारा ने उसकी बात काटी और एक झटके से उसके हाथ अपने कंधों से हटाए थे। फरहाद ने लब भींच कर उसे देखा। तो ठीक है, किस तरह मदावा हो सकता है मैंने जो भी किया? फरहाद का लहजा बदला था। मुझे कोई मदावा नहीं चाहिए, सिर्फ तलाक चाहिए। फारा ने कहकर रुख मोड़ा था। वो तो फारा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन तुम दुआ कर सकती हो कि मैं मर जाऊं और तुम्हारी जान छूट जाए। ये सब उसी सूरत हो सकता है। फरहाद ने झटके से पकड़कर उसे नज़दीक किया। या अभी किचन में रखी छुरी मेरे अंदर उतार दो, ताकि तुम मेरे नाम से आज़ाद हो जाओ। अगर ये सब नहीं तो मेरे पास गन भी है, पिस्टल। उसके साथ तुम्हारा काम ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। उसकी बात में फारा का रंग जर्द हुआ था। एक क्या बातें कर रहा था वो? तो बताओ, फिर तुम खुश हो जाओगी? फरहाद ने उसके चेहरे को देखा, जहाँ उसकी बात पर खौफ पैदा हुआ था। ये सब सुनकर खौफ क्यों फैला है तुम्हारे चेहरे पर? तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान मुझसे छूट जाएगी, अभी के अभी छूट जाएगी। फरहाद ने कहकर उसे झटके से छोड़ा और किचन से बाहर गया। फारा का दिमाग सुन्न हो गया। वो क्या करने वाला था अब? अजीब से अंदेशा और वसवसों ने उसे घेरा था। सूरत हाल ऐसी भी हो गई, गुमान में भी ना था। लरजते कदमों से किचन से बाहर निकली। अभी उसे देखने कमरे से बाहर जा रही थी जब वो तेज़ रफ्तारी से अंदर आया और अंदर आते ही कमरे का दरवाज़ा बंद किया। फारा के कदम वहीं जमे थे। जब वो पलटा, उसके हाथ में पकड़ी पिस्टल ने फारा को सकते में डाला। यहाँ रखो और ले लो बदला उन सब तकलीफ़ों और अज़ियतों का जिसका मैं बाइस हूँ। फरहाद ने पिस्टल उसके हाथ में पकड़ाया और इसका रुख अपने सीने पर रखकर उसे देखा। फारा की आंखों में तैरता पानी बहा था, होंठ लरस रहे थे और हाथों पर कपकपाहट थी। चलाओ गोली, डरो मत। फरहाद ने बेखौफी से उसकी आंखों में देखा। बहुत तकलीफ दी ना तुम्हें, उस सब का बदला इस सूरत में ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। उसकी बात पर फारा ने झटके से उसके हाथों तले दबे अपने हाथ निकाले थे। फारा की अजियत में इजाफा हुआ था। बेबसी की इंतहा पर जाकर वो हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी। सिसकियों और हिचकियों से रोते हुए उसका जिस्म सूखे पत्ते की मानित लरस रहा था। फरहाद ने पिस्टल सोफे पर उछाली और फारा के लरसते जिस्म को अपने सीने से लगाया। उसके सार में कैद वो बुरी तरह रो रही थी। फरहाद ने उसके बालों पर अपने लब रखे और नरमी से उसकी पछ चलाने लगा। प्लीज़ फारा, मान लो इस रिश्ते की हकीकत को। फरहाद ने उसके कान में सरगोशी की थी। अगली ही पल फारा बेजान होकर उसके बाजुओं में झूल गई थी। क्या हुआ इशाल बेटा? फरहाद के जाने के बाद उन्होंने इशाल को देखा, जो सोफे पर आकर बैठी थी। कुछ नहीं खाला जान, वो गमगीन सी बोली।
فرحاد نے کچھ کہا ہے؟ ان کے پوچھنے پر وہ خاموش ہی رہی۔ میری ہی غلطی ہے، مجھے اسے یوں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، نظر رکھنی چاہیے تھی اس پہ۔ انہیں تھوڑی دیر پہلے کہی فرحاد کی بات یاد آئی، کیسے وہ فارا کی حمایت کر رہا تھا۔ کل کی فلائٹ ہے لاہور کی، پیکنگ کر لینا، انہوں نے گہری سانس بھر کر کہا۔ یہاں آتے وقت کیا کیا نہ سوچا تھا، لیکن سب کچھ بالکل ہی سوچ سمجھ سے باہر ہوا تھا۔ آپ نے اتنی جلدی ہار مان لی خالہ جان؟ اشال تنزیہ ہوئی تھی۔ ارے ہار نہیں مانی، ماں ہوں، اس کی کان سے پکڑ کر سیدھا کروں گی اسے، لیکن ہاتھ لگنے دو، ہوا کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لاہور میں دیکھنا کیسے پکڑوں گی۔ کیا مطلب، وہ بھی جا رہا ہے؟ ارے تمہارے سامنے ہی تو بات ہوئی تھی ابھی۔ اس کی حیرانگی پر دیکھ کر انہوں نے کہا۔ نہیں، میں پانی پینے گئی تھی کچن میں، مجھے لگا وہ صرف ہمیں بھیج رہا ہے۔ نہیں، ساتھ ہی جا رہا ہے۔ ابھی اتنی ہمت بھی نہیں آئی کہ اس میں کہ ماں کو گھر سے نکالے۔ فرحت بیگم تو جانے اور کیا کیا بول رہی تھی، لیکن اشال کے دماغ میں کچھ اور ہی چلنے لگا تھا۔ ہیلو رفیق، میری بات غور اور دھیان سے سنو۔ میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، ڈاکٹر کو لے کر اس ایڈریس پر جلدی سے پہنچو۔ جی صاحب، خیریت ہے؟ رفیق صاحب کے اچانک فون کرنے پر گھبرا گیا۔ بس تم جلدی پہنچو، فرحاد نے کہہ کر فون بند کیا اور ایڈریس سینڈ کیا۔ ساتھ ہی یہ بھی لکھا کہ اگر ایڈریس سمجھ نہ آئے تو کال کر لینا۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد اس نے موبائل جیب میں رکھا اور بے سود پڑی فارا پر نظر ڈالی۔ یہ قصور بھی تمہارے کھاتے میں آنے والا ہے فرحاد ملک، وہ بڑبڑایا تھا۔ فرحاد نے کھانے کی ٹرے اٹھائی جو توں کی توں پڑی تھی، اسے لے جا کر یوں ہی فریج میں رکھ دیا۔ کمرے کی حالت سنواری، پسٹے اٹھا کر چھپائی۔ اس سب میں اسے کوئی 5 منٹ لگے۔ اس کے بعد وہ فارا کے جانب آیا، بیڈ پر پڑی چادر اس کی گردن تک ڈال دی۔ تقریباً 20 منٹ تک رفیق ڈاکٹر کو لے کر آ گیا تھا۔ اس نے رفیق کو نیچے ہی انتظار کرنے کا کہا اور ڈاکٹر کو اوپر لے آیا۔ بے ہوش کب سے ہیں؟ ڈاکٹر فارا کی آنکھیں دیکھتے بولا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، فرحاد پاس کھڑا بولا تھا۔ کیا کچھ پریشانی کی بات ہے؟ ڈاکٹر اس کی نبض چیک کر رہا تھا جب فرحاد نے پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں لگ رہی، لیکن ہو سکتی ہے اگر ان کی حالت مزید ایسی ہی رہی تو۔ ڈاکٹر کہہ کے میڈیسن لکھنے لگا۔ یہ میڈیسن منگوائیں اور انجیکشن بھی۔ جی۔ فرحاد نے پرچی پکڑی اور رفیق کو دینے گیا۔ میڈیسن لانے میں رفیق کو جتنا ٹائم لگا اتنے وقت میں ڈاکٹر نے فارا کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ فرحاد نے اس کی کل جو طبیعت خراب ہوئی تھی اس بارے میں بھی بتایا۔ اب آپ کو لازمی خیال رکھنا ہے کہ انہیں کوئی پریشانی نہ ہو، یہ کسی بھی بارے میں زیادہ نہ سوچیں۔ اگر اب انہوں نے ڈپریشن لیا تو انہیں اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ انجیکشن لگا کر ڈاکٹر نے فرحاد کو کہا اور میڈیسن کے بارے میں بتایا۔ جی۔ ہوش کب تک آئے گا انہیں؟ ان کی بات سننے کے بعد فرحاد نے پوچھا۔ کل صبح تک ٹھیک ہوں گی، لیکن یہ جو میڈیسن ہے نا، یہ لازمی کھائیں۔ اگر انہیں فاقہ نہ ہوا تو آپ انہیں کلینک لے آئیں۔ ڈاکٹر اپنا میڈیکل باکس اٹھا کر بولا۔ جی ٹھیک ہے، فرحاد نے کہا اور انہیں لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اور کیا تم کسی ملازمہ کا انتظام کر سکتے ہو کل صبح تک؟ 24 گھنٹوں کے لیے چاہیے ہوگی۔ ڈاکٹر کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد فرحاد رفیق سے بولا تھا۔ جی صاحب، میں کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے فون پر بتانا جو بھی ہوا، اور فضل سے کہنا اماں کو ٹائم سے کھانا وغیرہ دے اور میڈیسن کی یاد دلائے۔ جی صاحب۔ جی ٹھیک ہے۔ رفیق کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے اوپر آ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے کل صبح کی فلائٹ کا ٹائم چینج کروا کر دوپہر کا کروایا اور مزید 1-2 کال کر کے اپنے لاہور لیٹ آنے کے متعلق انفارم کیا۔ پھر کچن میں جا کر فریج میں پڑا دودھ کا ڈبہ نکالا اور گلاس میں ڈال کر دودھ پیا، ساتھ اپنی میڈیسن کھائی۔ پھر کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آف کی۔ فارا بیٹھ کے ایک سائڈ پر لیٹی تھی۔ وہ دوسری طرف آیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ساتھ بے سود سویا وجود اس کی نیند کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہا تھا۔ تھک کر وہ فارا کی جانب کھسکا، ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ چہرے کے قریب رکھے وہ انجیکشن کی زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ فرحاد نے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنا ہاتھ میں لے کر اس کی جانب کروٹ لے کر آنکھیں بند کر گیا۔ فارا جان سکتی تو جان لیتی کہ وہ فرحاد کے لیے کتنی اہم ہو چکی ہے۔ فرحاد کے دل میں فارا کے لیے محبت پیدا ہونا قسمت کی طرف سے اسے ملی گئی سب مصیبتوں اور اذیتوں کی تلافی تھی، کیونکہ اس محبت کا ادراک فرحاد کو اس وقت ہی ہوا جب وہ ہاسپٹل میں اس کے پاس تھی، اپنی طرف سے سرگوشی میں بات کر رہی تھی، لیکن وہ الفاظ فرحاد نے حرف پہ حرف سنے تھے۔ تبھی تو بے یقینی سے اس سے پوچھا تھا کہ تم میرے لیے رو رہی ہو، اور فارا ٹال گئی تھی۔ تب فرحاد جو اس رشتے کو لے کر جھجک رہا تھا اور کوئی حتمی فیصلہ نہ کر پا رہا تھا، بالکل کلیئر ہوا تھا، اور گزرتے وقت اور حالات کے ساتھ وہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا تھا، جو فارا کو حیران کر رہے تھے۔ لیکن فرحاد کو لگتا کہ اب یہ سب اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ جتنی بھی کوشش کرتا خود کو روکنے کی، پھر بھی وہ فارا کے سامنے انتہائی بے بس ہو رہا تھا اور ہنسا تھا خود پر۔
فارا اس سے علیحدگی اختیار کر کے اس سے انتقام لینا چاہ رہی تھی، لیکن فرحاد کو لگ رہا تھا قدرت نے اس کے دل میں فارا کے لیے محبت ڈال کر آلریڈی ہی انتقام لے لیا تھا۔ انتقام ہی تو تھا اس انسان کے آگے بے بس ہونا جو آپ سے نفرت کرتا ہے، نفرت کا بھرپور اظہار کرتا ہے، آپ کے جذبوں پر یقین نہیں کرتا چاہے آپ نے کتنی ہی کوشش کیوں نہ کی ہو، اور یقین دلانے میں آپ کب کامیاب ہوں معلوم نہیں، اور آپ کے یقین دلانے کے لیے سب اقدامات اگلے فریق کو مزید اذیت میں مبتلا کر رہے ہوں۔ کتنا خوفناک تھا یہ سب۔ فرحاد جیسے انسان کے لیے تو تھا، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ یہ سب اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ فارا نے صحیح کہا تھا، بے یقینی کو یقین میں بدلنے کے لیے بہت ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور فرحاد میں نہ تو ہمت کی کمی تھی نہ حوصلے کی۔ فرحاد پر یقین کرنا فارا کو لگ رہا تھا وہ خود کے ساتھ زیادتی کرے گی، اس سب میں اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، اور ایک جانب دل ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے پرسکون زندگی کی چاہ بھی کر رہا تھا۔ دل و دماغ کے اس جنگ میں چاہ اور عزت نفس کے بیچ میں پھنسی وہ ذہنی اذیت میں مبتلا تھی، اور چاہتے ہوئے بھی فرحاد کی سچی لگن کی پرکھ نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح جب فرحاد کی آنکھ کھلی، فارا اس کے سینے سے لگی تھی، سر تکیے کے بجائے اس کے بازو پر تھا، ایک بازو اس کے گرد سے پھیلایا تھا اور ایک گال تلے تھا۔ کتنی پرسکون تھی وہ اس پر، نہ کسی قسم کی جھجک تھی نہ خوف۔ فرحاد نے آہستہ سے اس کے چہرے پر پھیلے بال ہٹائے، منموہنی سی صورت اس وقت دل چھو رہی تھی۔ فرحاد کا دل کیا اس خوبصورت صبح اس کے ایک ایک نش کو چھو لے، لیکن اس نے خود پر قابو پایا، آہستگی سے اپنا بازو اس کے نیچے سے نکالتی اس کا سر تکیے پر رکھا، اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹایا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی، لیکن پھر نیند میں چلی گئی۔ روشن اور خوبصورت گہری براؤن آنکھیں بند تھیں، خوبصورت کٹاؤ والے لب ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ فرحاد کو جذبات پر قابو پانا مشکل لگا تھا، حالانکہ یہ کوئی پہلی قربت تو نہیں تھی جو ان دونوں کے درمیان آئی تھی، لیکن فرحاد اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ اسے لگتا وہ جب جب اس سے ملتا ہے فارا کی محبت اور اس کے دل میں اپنی جڑیں اور مضبوط کرتی جا رہی ہے۔ اس کا دل ہما کر کوئی انوکھا احساس پانے کی جستجو کرتا تھا، پھر اس پر یہ احساس بھی غالب آ جاتا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، اور جب یہ احساس زیادہ حاوی ہوتا تو وہ سب بھول جاتا تھا۔ اسی طرح اب بھی اس نے جھک کر نرمی سے اس کی بند آنکھوں کو چھوا تھا، اس کی سطوہ ناک سے اپنا ناک ہلکے سے مس کیا۔ پاگل، لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ سجا کر فرحاد نے اسے محبت سے دیکھا اور اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اپنا تکیہ فارا کے ساتھ لگایا اور فریش ہونے واش روم میں گیا تھا۔ صبح کے 9 بجنے والے تھے اور 1 بجے کی فلائٹ سے اسے لاہور جانا تھا۔ گھر جا کر ابھی پیکنگ بھی کرنی تھی۔ فریش ہو کر اس نے رفیق کو کال کیا اور ملازمہ کی بابت دریافت کیا۔ جی صاحب، انتظام ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی لے آؤ اسے یہاں، اور اسے بتا دیا نا جاب کے متعلق کہ اسے یہاں ہی رہنا پڑے گا۔ جی صاحب، بے فکر ہیں، سب بات ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، جلدی آنا۔ جب تک رفیق آیا فرحاد نے دودھ کے ساتھ بسکٹ کھائے۔ فارا ہنوز نیند میں تھی۔ فرحاد نے ملازمہ کو سب تفصیل بتائی اس کی دوائی کے متعلق، اور فارا کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھنے کی خصوصی تاکید کی، ساتھ ہی ملازمہ کا فون نمبر بھی لیا۔ اوکے، آپ نیچے جائیں، میں آتا ہوں۔ تمام ہدایات دینے کے بعد فرحاد نے ملازمہ سے کہا تو وہ سر ہلاتی کمرے سے باہر گئی، تو فرحاد فارا کے پاس آیا۔ اب جانے کب ملاقات ہو پائے۔ میں تمہیں بہت مس کروں گا فارا، مجھے نہیں معلوم میرے اندر تمہارے لیے اتنی فکر اور محبت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے۔ میرا اس پر قابو نہیں ہو رہا، اور اب تو میں قابو کرنا بھی نہیں چاہتا۔ I love you my dear wife. Hope we will meet soon. Bye. اللہ حافظ۔ فرحاد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا، آخر میں کہتے ہوئے اس نے اس کی ہاتھ کی پشت پر بوسہ لیا اور آہستگی سے واپس رکھا، اور اٹھتے وقت اس کی پیشانی چومی تھی۔ اس کا دل اس وقت فارا کو اس حالت میں بالکل بھی چھوڑ کر جانے کا نہیں تھا، لیکن مجبوری تھی۔ ابھی بہت سے اہم کام انجام دینے تھے جن کے لیے سالوں سے محنت کی تھی، اور کٹھن انتظار کے بعد اب وہ مرحلہ بہت قریب تھا۔ فرحاد باہر آیا تو ملازمہ نگہت اور رفیق کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، رفیق کا فون نمبر لے لیجئے، اسے کال کر کے آپ منگوا سکتی ہیں، اور کہیں بھی آنے جانے کی ضرورت ہو تو رفیق کو کال کیجیے گا۔ فرحاد باہر آ کر مزید کہنے لگا۔ جی، ملازمہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، شکل سے سلجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ صاحب جی، آپ بے فکر رہیں، یہ بیوی ہے میری، اتنی جلدی تو کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا، اور ہو بھی جاتا تو قابل اعتبار نہ ہوتا۔ رفیق نے فرحاد کی مشکل آسان کی، اسے واقعی فارا کو اس طرح چھوڑ کے جانے سے پریشانی ہو رہی تھی، اس کا دھیان ہمہ وقت اب اس کی جانب ہی رہنا تھا۔ بہت شکریہ رفیق، تو پھر اپنی بیوی سے خود ہی کہہ دینا کہ صاحب کی بیوی کا اچھے سے خیال رکھے۔ فرحاد نے رفیق کے کندھے پر ممنون بھرے انداز میں ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس کی بات سن کر رفیق کے چہرے پر خوشگوار بھری حیرت ابھری تھی۔ جی صاحب، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، صاحب کا خود پر بھروسہ کرنے پر وہ پھولے نہ سمایا تھا۔ اللہ حافظ۔
फरहाद उससे हाथ मिलाता अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा। गाड़ी में बैठकर उसने आखिरी निगाह ऊपर की जानिब की थी, जहाँ सिर्फ टेरेस नजर आया था। उसके जहन में कल का मंजर लहराया जब फारा ने गुस्से में उसे बोतल मारी थी। साथ ही कमरे में सोई फारा तसव्वुर में आई। हाँ, अल्लाह की अमान मेरी नक चढ़ी बीवी। उसने ठंडी सांस भरकर गाड़ी आगे की जानिब बढ़ाई थी। अल्लाह जाने ये लड़का क्या क्या करता फिर रहा है, रात रात भर घर नहीं आता। फरहत बेगम की सुबह खासी नाखुशगवार थी। 2 दिन से बेटे की हरकतों सकनात ने ब्लड प्रेशर हाई कर रखा था। अब भी सुबह की फ्लाइट का कहा था और खुद गायब था। दवाई की बाकायदगी के लिए उन्होंने बहालत मजबूरी नाश्ता किया था, वरना ज़रा दिल ना था। दिल को यही खदशा सता रहा था कि फरहाद कोई ऐसी हरकत ना कर दे जिससे इशाल को मजीद दुख हो, जो पहले ही आकर दुखी थी। इशाल नाश्ते के वक्त भी बाहर ना आई, और जब आई तो अपना बैग पकड़े हुए थी। अरे बेटा, अभी तो निकम्मा खुद नहीं आया, तुम सामान उठा लाई हो। वो उसको सामान पकड़े देखकर बोली। खाला जान, मैं आपके साथ नहीं जा रही। इशाल ने हैंडबैग सोफे पर रखकर उन्हें देखा। क्या मतलब? फरहत बेगम ने उसकी बात पर न समझी से उसे देखा। मतलब कि मैं इस्लामाबाद में बाबा के कज़न है, उनके यहाँ रुक रही हूँ। इशाल कहकर हैंडबैग से मोबाइल निकालने लगी, जिसकी मैसेज टोन बजी थी। लेकिन ऐसे कैसे? तारिक ने तुम्हें मेरे साथ भेजा था, और तुम साथ नहीं जाओगी तो वो क्या कहेगा? फरहत बेगम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो कुछ ऐसा कहेगी। बाबा से मैंने बात की है, वो कह रहे हैं उन्हें कोई मसला नहीं है। इशाल ने नॉर्मल अंदाज में कहा तो फरहत बेगम हैरान गुमगुम सी होकर उसकी शक्ल देखने लगी, जो मोबाइल में मसरूफ़ थी। लेकिन इशाल, फरहाद भी तो लाहौर ही जा रहा है ना, तो तुम भी साथ चलो। क्या पता उसके साथ वक्त गुजारो तो उसका दिल बदल जाए। फरहत बेगम कुछ देर बाद बोलने के काबिल हुई थी। नहीं खाला जान, मैं आ जाऊंगी 1-2 दिन तक। मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ, चलती हूँ, फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। इशाल के लहजे से जाहिर था वो अपना प्लान किसी सूरत नहीं बदलने वाली। उसने मोबाइल बैग में रखा और उनके गले आ लगी। अकेली जाओगी? ड्राइवर के साथ चली जाना। इशाल के अंदाज आज फरहत बेगम को हैरान कर रहे थे। फरहत बेगम ने उसकी शक्ल देखी। नहीं, वो बाबा ने बात कर ली थी अंकल से, उन्होंने गाड़ी भेजी है, ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है। उसने कहते ही वो अपना बैग उठाया और बाहर चली गई, और वो हवन्नक बने उसकी पश्च देखती रह गई। गाड़ी की तरफ बढ़ती इशाल अच्छे से जानती थी खाला को क्या महसूस हो रहा होगा। वो बहुत हैरान होंगी, और शायद किसी हद तक खफा भी, लेकिन कोई बात नहीं, वो उन्हें मना लेगी। लेकिन शायद किस्मत ने उसे आखिरी मौका दिया था हालात को अपने हक में करने का, और अपने मुताबिक वो वही करने वाली थी जो फरहाद को वापस लाने के लिए कर सकती थी। फरहाद उस मोहब्बत को भूला था, वो तो नहीं। वो ज़रूर कोशिश करेगी कि फरहाद एक बार फिर उसकी तरफ पलटे। वो उसे पलटने पर मजबूर कर देगी। इशाल के इरादे पक्के थे, वो पुरअज़म थी। फरहाद जब आया, अम्मा का मूड बहुत ख़राब था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अम्मा? उसने आते ही उन्हें सलाम किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब ना आया। क्या हुआ अम्मा जान, तबीयत ठीक है? फरहाद उनके पास बैठा। तुझे क्या फिक्र, मरूं या जीऊं, तू रह रात रात बाहर, तेरी बला से जो भी होता रहे। अम्मा हस्बे तवक्को गुस्से से बोली थी। किसने कहा रात भर बाहर था? मैं आया था मगर लेट, आप सो रही थी, फिर सुबह 5 बजे जाना पड़ा काम से, तो अभी आया हूँ। फ्लाइट भी लेट करवानी पड़ी। फरहाद का लहजा ऐसा था कि झूठ पकड़ना मुश्किल था, लेकिन अम्मा के तासुरात मजीद ख़राब हुए। वो उसे घूरने लगीं। क्या हुआ? फरहाद ने उनको घूरते पाकर पूछा था। रात में तेरे कमरे में सोई थी बेटा। वो तंजियाँ हुई। उनके जवाब पर फरहाद के चेहरे का रंग उड़ा था, और उसे अपनी अम्मा से इस बात की तवक्का बिल्कुल ना थी। मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, माँ हूँ तेरी। फरहत बेगम ने उसके चेहरे पर पहली खजालत देकर अपने खसूस अंदाज में नाक भर चढ़ाई थी। अच्छा, वाकई आप माँ है मेरी। सही कहते हैं, इंसान सबसे छुपा सकता है लेकिन माँ से नहीं, और मुझे आपसे बहुत प्यार है अम्मा। फरहाद ने सर हिलाकर दानिशवर अंदाज में कहा, गोया मस्का लगाना चाहा। चल चल, आया बड़ा प्यार करने वाला, बात को घुमा रहा है कि माँ भूल जाए और पूछे ना कि रात भर कहाँ था। फरहत बेगम पर उसके लाड का कुछ असर ना हुआ। अम्मा बता तो रहा हूँ, बहुत काम था, थक गया हूँ, अभी लाहौर में भी बहुत काम है। हाँ, फरहाद ने मस्कीन अंदाज में कहकर हमदर्दी बटोरनी चाहिए। फरहत बेगम ने तीखे अंदाज में उसे देखा। चेहरे से तो नहीं लग रहा कि रात भर के जागे हुए हो, चेहरा तो यूं चमक रहा है कोई किसी महबूबा से मिलकर आए हो। ओफो अम्मा, अब अल्लाह ने हसीन ही इतना बनाया है, थकावट में भी चेहरा चमकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। फरहाद ने फिर बात घुमाई। फरहत बेगम ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया, अलबत्ता दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। बदतमीज सही जो कह रहा था, खूबरू तो था वो। मैं पैकिंग कर लूँ, फिर निकलेंगे फ़्लाइट के लिए। आपने कुछ हल्का फुल्का खाना हो तो खा लीजिए।
फरहाद घड़ी देखता उठ गया। फरहत बेगम कुछ ना बोली, वो भी गहरी सांस भरता कमरे में चल दिया। आधा घंटा लगाकर तैयार हुआ और पैकिंग करके आया। फरहत बेगम वैसे ही बैठी थी, सोच में गुम बेजार सी। अम्मा क्या हुआ, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? फरहाद अपना छोटा सा बैग और बाकी चीजें पकड़े वापस आया तो उन्हें जू का तू बैठा देखकर हैरान हुआ। तो क्या करूं, ना सोचूं? फरहत बेगम ने चिढ़कर उसे देखा। क्या हो गया अम्मा? फरहाद ने खफा अंदाज में देखा। हाँ, बस मेरा ही दिमाग खराब हुआ है, वो और चिढ़ी। टाइम कम है, इशाल को बुलाइए, लेट हो जाएंगे। फरहाद ने मजीद बहस से इज्तनाब ही किया। इशाल चली गई है वो तंजीहा अनकारा भरती बोली। कहाँ? फरहाद को हैरानी हुई। अपने अंकल के घर। तुम तो उसे सही से बुला नहीं रहे, मेरी भी बेइज्जती करवा दी बच्ची के सामने। वो क्या हमारे मुंह देखती रहे? उसे क्या पड़ी है, वो खुद ही चली गई, वो चमक कर बोली, गोया उसे एहसास दिलाना चाहा कि वो सिर्फ उसकी वजह से गई है। लेकिन फरहाद ने उनकी बात पर कोई खास रिस्पॉन्स न दिया, नॉर्मल ही रहा। चलें फिर, टाइम से निकलते हैं। फजल, फजल, वो कहकर फजल को आवाज़ें देने लगा। दूसरी आवाज़ पर फजल फौरन आया था। जी साहब। अम्मा का सामान बाहर रखो और घर का ख्याल रखना, मुझे वापसी में कुछ दिन लगेंगे। फरहाद के कहने पर वो सर हिलाने लगा। जी साहब, बेफिक्र हो जाएं। चलिए अम्मा। फरहाद कहता हुआ उनकी व्हील चेयर थामे बाहर की जाने बढ़ा। अम्मा का तो दिमाग बंद हो गया जैसे। इसे तो इशाल की कोई परवाह ही नहीं थी, जो एक बार भी उसके जाने के बारे में कुछ कहा हो या किसी किस्म के तासुरात उसके चेहरे पर आए हों। उसके अंदाज ही उससे ही कुछ अंदाज़ा हो जाता, लेकिन वो तो जैसे यूं था गोया किसी आम इंसान की बात की हो। अब तो लगा था कि इशाल के साथ हैसियत कज़न भी कोई लगाव ना रहा था उसे। इस पर उन्हें लगा कि फरहाद को काबू करना तो शायद नामुमकिन ही है। इशाल के साथ ज़बरदस्ती शादी कर भी दी जाए तो क्या गारंटी थी वो उसे खुश रखेगा। यहाँ आने से पहले मामला और नौयत का था। फारा के बारे में उनके वहमो गुमान में भी ना था। तब सिर्फ फरहाद को शादी के लिए राज़ी करना था, लेकिन अब तो फरहाद को इशाल से शादी के लिए राज़ी करना था। दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फरहत बेगम को फरहाद का इशाल के लिए राज़ी होना इंतहाई मुश्किल लग रहा था। जाने क्यों उनके दिल को खदशा हुआ कि जो वो नहीं चाहती थी वो हो जाना ही था। फारा ही फरहाद की ज़िंदगी में आने वाली है, चाहे अब वो कुछ भी कर लें, और क्या पता आ ही चुकी हो। फरहाद की बातों से तो ऐसा ही लगता था। बहुत सी बातें फरहत बेगम के दिमाग में घूम रही थीं। वो जब से आई थी ये सब ही तो हो रहा था। इस किस्म की बातें सोच सोच कर उनका दिमाग पक चुका था। ऊपर से फरहाद के अंदाज उन्हें पागल करने को काफ़ी थे। एयरपोर्ट तक जाने तक और जहाज़ में बैठने तक वो मुसलसल मोबाइल में मैसेज करने में मसरूफ़ था, और मैसेज लिखते वक्त चेहरे पर जो तासुरात लाता वो उन्हें हिला रहे थे। बच्ची तो नहीं थी जो चेहरे पर आते नरम गरम जज्बे, लबों पर फूटती मोहब्बत भरी मुस्कान न समझती। लाहौर पहुंचने तक उन्होंने बस बेटे की शक्ल ही तो देखी थी, और खासी गौर से देखी थी, जो अलग ही कहानी सुना रही थी, खौफनाक कहानी। और उन्हें लग रहा था उस कहानी की चुड़ैल कोई और नहीं, फारा ही है, जिसने उनके बेटे पर जादू किया है। काला जादू, ऐसा काला जादू जो